How many of you are taking the mains this year or planning to take the mains of civil services examination 2025? Is there anyone who is trying to take the mains this year? No, very good. Because this class is going to commence for civil services examination 2026 onwards. Physics optional requires, with my speed, about 4.5 months of classes. 4.5 months. And the people who are planning to take mains this year, time is not sufficient at all. So this is not whatever the batch or whatever the seminar we are going to conduct, this is for the subsequent years, 2026 onwards. Batch is going to start from today. It is a marathon show. Once the batch gets going, my batch starts from starting date. Starting date is 2nd June and concluding date must be 5 months after that. Just count the 5 months and that is the deadline of this batch. So big task, a 5-year course, 4-year course in fact, 4-year course, whatever the syllabus has been prescribed in civil services examination in the physics optional, that syllabus is of 4-year degree course. And I have to complete that course in 4 months. So how I have done it, how I have divided that course? We start from paper 1. Why we start from paper 1, that also I will tell you, everything has got a logic. Paper 1 I take typically 3 months, 65 classes. 65 classes, if it is 25 classes per month, then it will take 2.5 months for paper 1. And paper 2 takes about 50 classes, A to Z. So that is 2 months, another 2 months. So 2.5 months and 2 months put together is 4.5 months. Sometime I take leverage of 15 days because if there is some off, some vacation due to your Deepavali or something, your Independence Day or something that kind. So 4 or 5 days leverage I have taken. So 4.5 months is the maximum which I have been taking to conclude this entire course up to the expectations of civil services examination. I started teaching in 1998 and when I started teaching, my thing was that whatever way whosoever sets the question paper of civil services examination, 5 questions are bound to come from my class notes. Only thing is that focus. What is the objective of the classroom program? Objective of the classroom program is to develop your level of comprehension. This is the exam according to me of comprehension. समझदारी का exam है, रटने का exam नहीं है. Never have that notion. Although derivations must be on fingertips. Many things you have to cram and mug up. But whatever this examination is looking out, whatever this examination is searching out in your personality and answers is comprehension. समझदारी चाहिए. Answer समझदारी reflect करना चाहिए. If your answer reflects understanding, that you have understood the problem, then only you can make an innovative and a new answer in the subject like physics, where everything is standard. Syllabus is, beauty of the subject is that syllabus is static. Almost this is not a general subject where any Tom, Dick and Harry can opt for the physics. Physics can be opted for only those persons who have got sufficient background into the subject. Either you are a graduate in physics or postgraduate in physics or engineering graduate. Other than that, I do not see any other qualifications people opting for the physics optional. This is one of the best optionals in civil services examination. I know many of you may be familiar with the statistics, many of you may not be familiar with the statistics. This is going to be my 0 class. 0 class means starting class, and in a starting class I expect that certain informations everybody must have. This is the exam of keeping your eyes, ears and all senses open. जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो कुछ चीज़ भी दिखाई दे रही है उसको अपनी क्रिटिकल एटीट्यूड से उसको समझने की, परखने की, देखने की दृष्टि डेवलप करें. अगर आप किसी एरिया में जा रहे हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट देखा आपने, इंडिया गेट के राउंड अबाउट के साथ है, तो एनजीएमए में कौन कौन सी पेंटिंग लगी हुई हैं, वो उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो बिल्डिंग किस ज़मीन में बनाई गई है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन यू मस्ट ट्राई टू हैव. सो आई से इन वेरी सिंपल वर्ड्स, योर आईज एंड ईयर्स मस्ट बी open. This exam, many of the statements are oft repeated, which you will, starting from today, all 5 months you will keep on listening these statements.
दिस इज द एग्जाम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद की पहचान का एग्जाम है, खुद की। आप वही इस एग्जाम को पास करता है जो अपने बारे में, दूसरे के बारे में तो दुनिया जान जाती है, दूसरे के बारे में जानना बहुत आसान है कि नो अबाउट द अदर्स, कि ये नहीं कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, ये करना चाहिए उसको, एंड सरमनाइजिंग अबाउट द अदर्स इज आल्सो इजी। व्हाट इज डिफिकल्ट इज टू नो अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू लैक, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम एंड वेयर डू यू स्टैंड। अर्लियर you know all those limitations, easiest is this exam to qualify. Many people qualify this exam in first attempt, many people qualify this exam in second attempt, many people qualify this exam in third attempt, many people qualify this exam in sixth attempt, and many people are never able to qualify. 13% to 15% people every year, 13 से 15%, मतलब 100 में 15 लोग, अगर 1000 सिलेक्शन हो रहा है, 1000 सिलेक्शन हो रहा है तो 1000 में कितने, 130 से 150, 130 to 150 people qualify this exam in first attempt, but it is percentage is hardly 15%. 13 to 15% people qualify this exam in first attempt. Who are those people? Who are those people? Those people are those who have planned, who have got a proper plan, proper strategy. They know the requirement of this exam, and whatever the efforts are required to qualify this exam, they have put those efforts in their first attempt. They are able to bridge up all those gaps, and God has been graceful on them. That is why they first attempt. Second attempt, 22% people. 22% people qualify the exam in second attempt, and about 25-26% people qualify the exam in third attempt. So, matlab more than 60% people, about 55-60% people, 13 to 15% first attempt, 22% to 25% second attempt, 25-26% in third attempt. I mean 60% of the people qualify the exam in 3 attempts. That's it. If you are a good and smart person, and I consider everybody who is opting for physics is a smart person by default. If you are opting for physics optional, by default you belong to, according to me, in a smart category. If you are a smart category of students, you should fall within 60% of this bracket. 60% means how many attempts you require maximum? 3 attempts. If your strategy is clear, you have got faith. IIM अहमदाबाद का मोटिव स्टेटमेंट क्या है मालूम है? मोटिव स्टेटमेंट IIT बॉम्बे का क्या है? ज्ञानम परमम देयम, है ना? दैट इज कॉल्ड मोटिव स्टेटमेंट। IIT बॉम्बे के जो आर्क लगा हुआ है ना, इन्फिनिटी आर्क बोलते हैं उसको, क्या लिखा हुआ है? ज्ञानम परमम देयम। जिंदगी का पूरा लक्ष्य क्या है? ज्ञान है। ऐसे ही IIM का लिखा हुआ है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? जिसके पास श्रद्धा होती है। ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूं, जिंदगी भर का तजुर्बा लेके खड़ा हुआ हूं, और अब मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, कभी पास नहीं होगे, क्योंकि किस डिक्टम को तुमने क्वेश्चन कर दिया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब मैं जो कह रहा हूं सिर्फ क्या कर सकते हो, उसको जाके इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि ब्लाइंडली यू हैव टू एक्सेप्ट मी व्हाटएवर आई एम सेइंग, बट व्हाटएवर आई हैव सेड, इफ इट इज लॉजिकल, इफ इट इज रेशनल, देन यू मस्ट accept that and put it into practice. Accepting that is not important. Many people will accept that. After accepting, successful are those who are able to put that into practice. Otherwise it is a mere advice. Advice is given to all the people sitting into the class, but that advice is not fruitful for everybody. This advice will be fruitful for only those people who will try to implement my advice. My advice is consequence of my wisdom, which has been developed over this vast experience involved in this examination process of more than 30 years. So whatever I am saying, being a teacher of physics is the subject which requires open analytical and critical mind. सबसे पहला क्या? दिमाग खुला होना चाहिए। बंद दिमाग का सब्जेक्ट नहीं है ये। मैंने कह दिया इसलिए सत्य है नहीं, ये सत्य है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वेरीफिएबल है, दुनिया भर की किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए वो सत्य है। किसी के कहने से यहाँ कुछ भी सही नहीं होता है, और पूरी क्लास कहेगी गलत है, और मैं एक बात में कह रहा हूं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, में कह रहा हूं सत्य है तो सत्य है। यहां पर डेमोक्रेसी, बहुत बार मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हंसूंगा कि इन माई सब्जेक्ट डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क। फिजिक्स में तुम सारे 19 लोग कह रहे हो और मैं कुछ कह रहा हूं सही, मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा क्या करो, किताब से जाके वेरीफाई कर लो जाके, और इतना भी समय नहीं होता, जाके वेरीफाई कर लो और मुझे करेक्ट कर दो, आई विल वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे पास वास्ट एक्सपीरियंस, मुझे याद है कि क्या है, क्या होना चाहिए।
तो जो चीज है यहाँ पर डेमोक्रेसी भी, बाकी सब्जेक्टों में डेमोक्रेसी काम करती होगी कि मेजॉरिटी कहेगी कि ठीक है तो ठीक हो जाएगा, यहाँ मेजॉरिटी के कहने पर फर्क नहीं पड़ता है। दैट इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइड और नॉट, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। फिजिक्स की दुनिया में एक्सेप्टेबल है तभी वो एक्सेप्टेबल है। सब्जेक्ट हैज गॉट 5 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस व्हाई वन मस्ट ऑप्ट फॉर फिजिक्स। ऑलरेडी आई थिंक whosoever comes for the seminar, most of you have already made up your minds that you have to opt for the physics. If you have not made up mind to opt for the physics, then I say there are 5 points in favor of the subject. Subject is static, syllabus एकदम fixed है, few things only keep changing, nature of questions is fixed, syllabus is static, first point. Second is subject is objective, there is nothing called subjective in answers. If answer is there, whether I like or I do not like does not make any difference. If answer is correct, answer is correct. For correct answer, I am bound to give you 60% of the marks. And try to appreciate whatever I call 60% in this exam, that is exactly of any other exam which you have already taken is 95%. Whatever is 90 to 95% of your earlier exams, in this exam that boils down to 60%. That we call normalization or rationalization. First of all, like many of you are not aware, so I am telling you from the beginning. When I say 60% marks or 65% marks, that is rationalized or normalized. So try to understand this meaning of normalization. Like if we allow the kind of marks physics or mathematics subjects have got in university exams, then everybody from physics and maths will qualify with the even 3 questions, and no one will qualify from the humanities disciplines. So this exam, civil services exam, provides a level playing field. Level playing field means they normalize the score. In physics, 90% typically becomes, although it varies from year to year, but rationalization factor is from 65 to 75%. For every correct answer where I cannot add any value to that answer, I will give you 60% to 75%. That depends. 60% to 75%. Bookish answer, whatever is written into the textbooks or IIT kind of exams, I am going to give you what marks? 60%. Above 60%, whatever you are going to get, 65%, 70% or 75% is value addition to that answer. That answer has to be made different from the answers of the textbooks. Therein lies the importance of the guidance like me. My guidance typically starts if you have done your all hard work, if you are capable of getting 125 plus marks, 50% plus marks. 50% plus marks means, in scoring 50% marks in this exam means that your at least 80 to 85% question paper has to be correct. If in any other exam, if you would have appeared in IIT kind of exam or any other kind of exam, if I am giving you 8.5 marks out of 10, then in this exam I am going to give you 6 marks. पहले बात है सबको समझ जाए कि अगर आप IIT में पढ़ रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और अगर आपको उस एग्जाम में मैं 85% मार्क्स दे रहा हूँ, तो इस एग्जाम में वो कितने में रिड्यूस हो जाएगा? 60 to 65%, 65-70% तक मैक्सिमम रिड्यूस हो जाएगा. बस 60% करेक्ट आंसर है, 60% कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन किया है, नीट एंड क्लीन आंसर है, यू हैव गिवन सर्टेन एप्लीकेशन टू दैट, सर्टेन इंटरप्रिटेशन टू दैट आंसर, आई मे गिव यू 1 more mark. So examiner's discretion lies with 10 to 15% marks every question. So if in every question, 10 mark question, you add the value of 10 to 15%, then in the whole paper it becomes 15 to 20% marks, which makes a great difference. ठीक, 4-5 लोग स्मार्ट थे इस क्लास में, 4-5 को मैंने स्मार्ट डिक्लेयर किया था ना? क्यों किया था? 3 बजे आके बैठ गए थे वो, आप सब 5 बजे आए हो ना 5 बजे. फ्यू पीपुल हैव कम हियर एट 3 o'clock. 3-4 आए थे, उनको मैंने एक टास्क दिया था और मैंने कहा था स्मार्ट हो. क्या टास्क दिया बताओ? व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर दिस एग्जाम? Total marks 2025. Out of 2025, what are the marks for the written? 1750. Good. Then I have given you the task afterwards. Let us focus. 1750 is the marks for the mains. Everybody must remember that and everybody knows it. Marks for the interview 275. What are the average marks for up to rank within 100? एवरेज निकालने के लिए दिया था ना मैंने किसी को, एवरेज निकालने के लिए दिया था ना मैंने एवरेज कैलकुलेट कराया था यहां पर कि इफ वांट टू स्कोर रैंक विद इन 100,
General category only 80 first rank, up to 80 first rank people will get IAS exam. If you want to get into IAS, rank within general category must be within 81. And what is the average marks up to 100? Interview marks only I am talking. 180 कितना? 180 इन्होंने एवरेज निकाला है. 180 मार्क्स एवरेज चाहिए 100 की रैंक के लिए. ये ध्यान रखना, अगर इंटरव्यू में 180 से कम है यू आर नॉट गोइंग टू गेट रैंक विद इन 100. चलिए इंटरव्यू का 180 निकाल दीजिए. व्हाट इज द कट ऑफ, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट रैंक? रिटर्न मार्क्स बताइए. चलिए रिटर्न बताइए आप बताइए. चलिए टोटल बताइए, टोटल कितना था फर्स्ट रैंकर का? 1043. सबको मालूम है, सबको याद रहे इस बार का फर्स्ट रैंकर का मार्क्स कितना है? 1043. इंटरव्यू में कितना था उसका? 200 था. रिटर्न में कितना टोटल? 843. मेरी स्टूडेंट जो कोमल पुनिया है ना सिक्स्थ रैंकर, उसको 858 आया हुआ है. ताली बजाओ उस बात पे. मार्कशीट लगी हुई है. जो मेरी स्टूडेंट है कोमल पुनिया फिजिक्स ऑप्शनल की, उसको रिटर्न में कितना मार्क्स आया है? 858. गूगल सर्च कर सकते हो जाके. 858 मार्क्स है फिजिक्स वाले को. और जो फर्स्ट रैंकर कितने मार्क्स हैं? 843 है फर्स्ट रैंकर. ऑप्शनल में कितना है उसमें? 843 में 273 है सिर्फ. ऑप्शनल में कितना है? सिर्फ 273 है. रेफरेंस लेवल आपको याद कर लेना चाहिए. 273 रैंक में 273 मार्क्स ऑप्शनल में कितनी रैंक आई है? AIR 1. ठीक, अभी हमारे पास 38 रैंकर आके बैठ गए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे. उनको भी 273 आया फिजिक्स में, और 273 में उनकी 38 रैंक आई है. 273 ही मार्क्स है फिजिक्स में, और फिजिक्स में 273 लो मार्क्स है. अभी खुद बताएंगे. पेपर 2 में उसको हाईएस्ट है, 165 है. पेपर 1 में उसका 50 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, छोड़ गया था. सब हाउ ही मिस्ड 50 मार्क क्वेश्चन. दैट इज हाउ हिज मार्क हिज स्कोर इज 273. एंड जो 19th रैंक आई है उसको फिजिक्स में 268 ही है. तो ये मत समझ लेना इतना आसान है. ये मैसेज सिर्फ दे रहा हूं कि 250 मार्क्स लाने के लिए इस एग्जाम में उल्टा लटक जाना पड़ता है. ये मेरा इडियम समझना हिंदी का. जब मैं बार बार कहूंगा उल्टा लटक जाना पड़ता है, इसका मतलब कोई शीर्षासन नहीं करना पड़ता है. क्योंकि एक बंगाली आया लास्ट ईयर मेरे पास, और वो कहे मुझे, वो हंस रहा है देखो, खुद के क्लास में आया, उसने कहा मैं शीर्षासन करना चालू कर दिया हूं, अब तो सर पास हो जाऊंगा. उल्टा लटकना हिंदी का एक इडियम है. उल्टा लटकने का मतलब है यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू डू ए साधना और तपस्या. 8 से 10 घंटे पढ़ने को मेरी भाषा में कहते हैं, क्योंकि 8 से 10 घंटे आप रेगुलर अगर पढ़ोगे तो आप मेरी समझ में क्या कर रहे हो? उल्टा लटक रहे हो. और 8 से 10 घंटे पढ़ना आसान नहीं है. अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट रैंकर हो, टॉप 5 में रैंक लाए हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ने का एवरेज पढ़ने का आपको? 4 से 5 घंटा. यही है. अगर आप 4 से 5 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए था? टॉप 5 में आना चाहिए था. और अगर आप टॉप 5 में नहीं आए हो, इसका मतलब 4 से 5 घंटा रेगुलर एक सेमेस्टर पढ़ने की आपको आदत नहीं है. और ये एग्जाम क्या डिमांड करता है मेरी नजर में? 10 घंटे रोज. 10 घंटे रोज की साधना है 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से लेकर 1 साल का रिक्वायरमेंट है. 10 आवर्स ए डे. अगर 10 आवर्स ए डे इफ यू कैन अफोर्ड, देन मेरी भाषा में आप क्या कर गए? उल्टा लटक गए. एग्जाम पास हो ही जाना है, प्रोवाइडेड यू आर स्मार्ट. वर्क इज हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम. एग्जामिनेशन रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क. एंड अभी तो मेरा कैच लाइन एडवर्टीजमेंट लिखा है मैंने इस बार. मैंने एडवर्टीजमेंट खुद लिखा है अपना कि दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स समथिंग मोर देन स्मार्ट वर्क एंड इट इज गाइडेंस ऑफ वाजपेयी सर. स्मार्ट वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि मेरे जैसे आदमी की गाइडेंस मिले, जिसको पूरा मालूम है एग्जामिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट है. आपको थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी कि क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे सब कुछ मालूम है. तो मैं तब डिफाइन करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास इतना समय नहीं है. आज का शो मेरा शो नहीं है. शो तो पूरा ही मेरा है वैसे, लेकिन आज का शो मैंने अपने लिए नहीं रखा है, क्योंकि बुलाया है किसी टॉपर को, तो उसको मैं बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ. अभिषेक बहुत प्रिय मेरा, इसको एडमिशन नहीं दिया था मैंने. एक बात और बताऊंगा, अभी पूछूंगा, अभी तक कुछ काम कर दूंगा इसको. और इसने सिर्फ मेरे नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है. वेरी हैप्पी. आओ आओ, इधर से आ जाओ. वेलकम वेलकम अभिषेक शर्मा. बहुत प्रसन्नता हो रही है तुमको सेमिनार दे रहे हो. भूखे दे रहा हूँ तुमको. बैठो तो कुर्सी में बैठो आराम से.
मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे जब मैं किसी टॉपर को लेकर आता हूँ। मेरा पूरा जब मेरा खुद का सिलेक्शन 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, 93 का इंटरव्यू दिया, 94 का इंटरव्यू दिया और मुझे इंटरव्यू में 105 नंबर आए थे, ठीक है। और रिटर्न में मुझे उस ज़माने में 2000 का एग्ज़ाम होता था। एक बार 1016 मार्क्स आए हुए हैं, एक बार मुझे 1053 मार्क्स आए हुए हैं। जब मुझे 1017 मार्क्स 16 मार्क्स आए हुए थे तब जो बिहार के आज की डेट में डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फर्स्ट रैंक 141 रैंक थी उनकी 90 के एग्ज़ाम में, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी रैंक टॉप 5 में आएगी। लिखित में मेरी डायरी में लिख कर दिया हुआ है। और मुझे 105 नंबर इंटरव्यू में दिया गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगली बार भी 63 दे दिया गया था मुझे, 93 94 की बात है। तब से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि चलो मैंने इतना मेहनत किया इस एग्ज़ाम के लिए तो अब उसका क्या करूँगा। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहा हूँ 20 साल, भारत सरकार की मैंने 2014 तक फुल टाइम सेवा की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो 95 से जब मैंने मेरा साइकिल क्या आई स्टार्टेड, बैठो, माई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21। माई लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग। मेरे पास हर चीज़ प्लान है, 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, सारा प्लान है। बड़े बड़े काम, एक एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, मेरे क्लासमेट ने पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर ली थी, पूरी डिक्शनरी याद कर ली थी 2-3 महीने के अंदर। एक IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट था जिसने मेरे टाइम में, और वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, ये और बता दूं, ये नहीं था कोई किसी कॉन्वेंट स्कूल का कहीं का पढ़ा हुआ था, वो एकदम धरतीपुत्र व्यक्ति था जिसने पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 3 महीने के अंदर याद कर ली थी। और ये मेरा तकिया कलाम है, एक सेमिनार में जरूर कभी न कभी बताऊंगा कि पूरी डिक्शनरी कैसे याद कर ली गई थी। और मैं उसका साक्षी हूं, क्यों मैं ही पूछता था, ए के कोई भी वर्ड याद पूछ ले मेरे से, तो मैं डिक्शनरी में कुछ भी पूछता था, जितना कठिन से कठिन सब बता देता था। जेड के कोई भी पूछ लो, वाई के कुछ भी पूछ लो, किसी भी पी के कोई भी पूछ लो, तो उसने पूरी डिक्शनरी याद कर ली थी। GRE में उसको 2340 स्कोर आया था, 2340 उस टाइम में, अभी अमेरिका में रहता है। तो डिक्शनरी जैसे याद करना, तो बड़ा काम आराम से अकम्प्लिश किया जाता है। टू ब्रेक दैट वर्क इनटू स्मॉल थिंग्स, दैट इज अ मैसेज। चलिए, आज मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर बोलते आज का शो अभिषेक के नाम है, अभिषेक शर्मा। दिस ईयर ही हैज गॉट 38 रैंक। दिस वाज प्रैक्टिकली हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला ही अटेम्प्ट, वैसे तो थर्ड अटेम्प्ट है, हाँ थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन मेंस पहला ही है। हाँ, फर्स्ट मेंस विद फिजिक्स ही ऑप्शनल था, ऑप्शनल। ही वाज नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड, वेरी वेल डिफाइंड कि फिजिक्स ही लेना है, बट 2 बार प्री पास नहीं हुआ। तो जब ये दूसरी बार मेरे पास टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार आए थे, पहली बार दोनों बार आए थे, तो मैंने इनको कहा एडमिशन नहीं दूंगा भाई साहब। मैं टेस्ट सीरीज में नॉर्मली किसी को एडमिशन उन्हीं को देता हूं, जो AITDS चल रही है मेरी। 8 जून से मेरी AITDS शुरू है, ऑल इंडिया टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज। We have got only limited seats because I have got limited energy and limited time. I cannot, if there are 80 admissions, don't expect that I will be able to evaluate answer sheet of all 80 people. मैं 30-35 लोगों की कॉपी जांच पाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, थंब रूल है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हमेशा 20 साल से बोल रहा हूँ, मैं सबकी कॉपी नहीं जांचता। शुरू की 3 कॉपियाँ, चाहे क्वांटम हो, 3 पेपर जो होते हैं, हर की एवरी पर्सन आंसर शीट आई इवैल्यूएट, और माइक लेके बोलता हूँ। शुरू की 3 कॉपियां में गधे की भी और घोड़े की भी, तीनों की जांचता हूं। 3 कॉपी के अंदर जिसका 40% से नीचे आता है, 100 नंबर, मतलब 250 के पेपर में कितना 40%, 40% कितना हो गया, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के ऊपर वाले की सबकी कॉपी मैं ही जांचता हूं। लेकिन जिसका 80 आता है, 50 आता है, 60 आता है, मैं उसकी कॉपी नहीं जांचता। उसकी कॉपी कोई मेरे यहां दूसरा आदमी जिसको लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं, 250 से ज्यादा नंबर आया होता है, और जिसको फीस में कंसेशन चाहिए होता है। मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो डिफरेंशियल है, समझ रहे हैं, मतलब वो फ्री भी हो सकती है, वो 5000 रुपए की भी हो सकती है, वो 6000 की भी हो सकती है, 10000 की भी हो सकती है। उसकी फीस 14160 है। मोस्ट ऑफ द पीपुल के लिए उसकी फीस 14160 है। लेकिन आप कहोगे मुझे फ्री करनी है, तो मैं पूछूंगा पिछली बार मेंस दिया था? पिछली बार मेंस दिया था, 270-80 नंबर आए थे, 30 कॉपी जांचने के लिए तैयार हो, कितनी? 30। अब चाहे पहले टेस्ट की 5 जांच दो, दूसरे की 5 जांच दो, तीसरे की 5 जांच दो, 6 टेस्ट में 30 जांच दो, और चाहे 1 टेस्ट की 30 जांच दो, 30 कॉपी जांचोगे, मैं तुमको 5000 रुपए का, क्योंकि देयर इज नो, अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कह गए, अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कह गए कि देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। अगर कोई फ्री में कोई चीज बांट रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा धूर्त है, वो आपको ठग रहा है।
उसके इंटेंशन पे 10 बार डाउट करना। अगर कोई चीज फ्री में कोई बांट रहा है, कोई चीज दुनिया में फ्री में मिलती ही नहीं है। तो मैंने एकदम थंब रूल कह रखा है कि 5,000 या 6,000 रुपए का कंसेशन दूंगा। कब दूंगा? जब क्या करोगे, कम से कम 30 कॉपी जांचोगे। लेकिन हर एक के लिए नहीं है। किसके लिए है वो? जो पिछले एग्जाम में कम से कम 250 नंबर लाया हुआ है, 250 मार्क्स लाया हुआ है। आप जांच दो, 30 जांच दो, 5,000, 60 जांच दो, 10,000, 15 जांच दो, 2,500, एकदम अंगूठे का नियम है। तो जो उसके नीचे वाले मार्क्स आते हैं, 80 नंबर आ गया, 60 नंबर, पहले तो मैं समझता हूं 90% प्रीलिम्स ही पास नहीं करेंगे। जांचता हूं कॉपी फिजिक्स की और प्रेडिक्ट करता हूं रिजल्ट प्री का, क्योंकि क्या कहता हूं, एकेडमिक कंपिटेंस इज ट्रांसफरेबल। If you are good in physics, if you are excellent in physics, you will be good in GS also. There is all possibility that you will be good in GS also. Or if you are good in GS, all possibility that you can be good in physics also. Because excellence requires a framework. Excellence in any subject requires a framework. It is hard work, it is sincerity, it is smart work, it is neat and clean. Everything put together is required for achieving excellence in any field. Correct? So not taking much time because you will keep on listening me and मुझे सुनना और मुझसे बात करना और मेरी क्लास अटेंड करना अपने आप में एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। खुद से बोल रहा हूँ मैं, जितना तजुर्बा लेके खड़ा हुआ हूँ और जो भी यहाँ पर पुराने भी कई सारे बैठे हैं, जाके बैठोगे, मेरी हर क्लास, फिजिक्स तो सिर्फ 90 मिनट है, 80 to 90 मिनट, उससे ज्यादा आज तक मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ाई। सारा चैप्टर खत्म, 12 क्लास में, 15 क्लास में पूरा कोर्स खत्म, 600 पेज का, और फिजिक्स कितने देर पढ़ाई? सिर्फ 80 to 90 मिनट्स। और उसको क्या कहा? फेनमैन गोल्डन स्टैंडर्ड। अपना निकाल दिया फेनमैन गोल्डन स्टैंडर्ड, फर्मी गोल्डन रूल है ना, ऐसे मैंने निकाला फेनमैन गोल्डन स्टैंडर्ड। फेनमैन लेक्चर रूल, लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है कि यू टीच physics for more than 80 to 90 hours, your reception is exponentially decreased. So मैं कभी फिजिक्स 80 से 90 मिनट नहीं पढ़ाता, 20 से 25 मिनट तो रोज मुझे क्या करना होता है, मोटिवेशनल टॉक देनी होती है। जो बहुत, अब जैसे बैच चालू हो जाएगा, रोज मेरे मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में बोलते हुए लगेंगे आपको। अदरवाइज फिजिक्स इज टिपिकली टॉट इन इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिजिक्स आई टीच ओनली इन इंग्लिश मीडियम बिकॉज आई गेट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री and I took the exam in English medium. I think that exam is qualified in English as a medium of instruction. That also I think that examination is qualified with only English as a medium of instruction because it's an all India competition. Whatever I like that people may qualify with the vernacular mediums, but matter of fact is that this exam is qualified with English as a medium of instruction. If your English is not good, it is very difficult to qualify this exam. I am just closing my address in today's class with this note that this examination requires holistic preparation. If someone is opting physics because they are not good at languages, they feel that their English is not good, then definitely this exam is not for you. Exam is to be passed by having good GS. There is no substitute for good GS and good essay, because before 2013 strategy was reversed. During my time and up to 2013 there used to be two optionals. GS was only weightage of 28%, 72% was weight was for optionals, 600 marks, two optionals were there. Now there is one more optional, 500 marks, and GS and essay put together is 1250 marks. Total weight for GS and essay is 72%, optionals weight is just 28%. So even if you get excellent marks in optional, like for example he has scored 273 marks but still his rank is 38, and other person 19th ranker, his marks in physics I said what, 268, but his rank is 19. So not due to physics, highest marks in physics is 318, but the person who has got 318 marks in physics, his rank is 600, 680 or something. समझ रहे हैं जी? जिसको 318 नंबर आया उसकी रैंक कितनी, और जिनको 268 आया उनकी रैंक कितनी, उनकी रैंक 19 है। और जो जिन पे इनफैक्ट जिसकी 6th रैंक है उसके भी फिजिक्स में 304 है, 308 नंबर ही हैं, उसके भी 318 नहीं है, 300 प्लस हैं, 300 प्लस हैं फॉर 6th रैंकर. So for doing well and getting good rank in this exam requires balanced mark sheet.
Good score in essay, good score in GS, good score in optional, and in optional anything above 275 according to me is A grade. जो IIT वाईटी से पढ़कर आए हैं A grade जानते हैं ना, A grade का मतलब यहाँ पर कितना है 275, और 275 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपका पेपर कम से कम 90% करेक्ट होना चाहिए. बोथ द पेपर्स. If there are 5 questions, your 4.5 questions has to be correct. Minimum 450 marks का जब correct होगा, then only you will end up with 275 marks. And 275 marks in this exam in any optional are outstanding marks. Already I said, I told you the marks of the first ranker in optional 273. So if, and in physics 275 are regarded as average marks. Outstanding is above 300. This year also more than 10%. I have scored 300 plus marks in physics optional. Physics is the best optional with this statistics closing. 100 people take the exam. Out of 100, 19 people have qualified this year with the physics. About 35 people have taken the interview. 100 में से 35 लोगों ने इंटरव्यू दिया है फिजिक्स ऑप्शनल के साथ. ठीक है, आपको जो बनाना है बना लो. माइक लगाऊं? मैं तो बोल दिया जो बोलना था, मैं तो जा रहा हूं. अब तुम माइक लगा लो. मुझे बैठना है? बैठिए सर. मैं बैठता हूँ, आराम से बोल लोगे ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं. देखो ये IAS ऑफिसर है, लेकिन मेरे तो स्टूडेंट ही हैं. मेरे तो हमेशा वही रहेंगे, मेरे तो बच्चे जैसे हैं एकदम, और बहुत प्रिय हैं. जितना भी 2-3 साल से मैं ऑपरेट उनको अच्छे से जान रहा हूँ. 2-3 साल से मेरा जब भी ये मेरे पास आए हैं, जब भी ये देखिए, लोग बहुत कहेंगे कि सर बहुत बिजी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अभिषेक ये बताएंगे यहाँ पर आके कि सर जब भी अभिषेक आए, बिल्कुल सर ने हमेशा टाइम निकाला और हर चीज को इनको आंसर किया. क्योंकि अभिषेक जब पहली बार इनको टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन इनको मैंने कहा चैलेंज दे रहा हूँ, पहला पेपर दे के आ तू. और पहले पेपर में तुमको 130-135 नंबर दिया था, 138 है कुछ मार्क्स दिए थे इनको पहले पेपर में. और मैं तो 100 के ऊपर खुश हो जाता हूँ. 100 नंबर आ गया, 40% आ गया तो चलो ठीक है यार, मेहनत करिए, थोड़ा इम्प्रूव करा देंगे. But in first paper, when he took the exam, he got 138 marks. If I am not wrong, he got 130. I became very happy. और मैंने कहा तू कभी भी आ, फ्रीली, तेरे लिए फ्री हूँ. तो मुझे खुश करने की एक ही चीज है, अगर मेरे टेस्ट सीरीज में 130 प्लस आ जाता है, ऑल टाइम यू कैन कम एनी टाइम. कभी फोन करो, कभी डिस्टर्ब करो, आई एम नॉट डिस्टर्ब, आई एम फील हैप्पी. तो भाई साहब किसी आदमी को ऐसे को पे एनर्जी लगा रहा हूँ जिसको एग्जाम पास हो जाएगा. और मेरी एनर्जी लिमिटेड है, मुझे नहीं मालूम आपके पास कितनी एनर्जी है, लेकिन मेरी एनर्जी लिमिटेड है. तो मैं अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं पे लगाना चाहता हूँ जिनसे मुझे एक्सपेक्ट, और मुझे इस एग्जाम का लेवल मालूम है, कितना एग्जाम है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस एग्जाम की, मुझे अच्छे से मालूम है कि कितना उल्टा लटकना पड़ता है इस एग्जाम को पास करने के लिए. तो अगर मुझे लगता है कि आपके पास एनर्जी है तो मैं एफर्ट करूंगा, तो आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओगे, एग्जाम पास हो जाएगा. नहीं तो मैं एनर्जी लगाता रहूंगा, कुछ नहीं होगा. क्लास पूरी होती है, क्लास में सिर्फ 30% लोग एग्जाम को पास करते हैं, 70% हमेशा फेल हो जाते हैं. बेस्ट क्लास है, इंडिया की बेस्ट क्लास है. तब भी कितना सक्सेस रेट है, 30% लोग इंटरव्यू का कॉल लाएंगे इसमें, ये नहीं सारे पास हो जाएंगे, 70% को तो फेल होना ही है. तो जिसको पास होना है उसको क्लास के 30% में आना है. ये थंब रूल है. कंपटीशन इसी क्लास के बीच में, इस ऑप्शनल में. ओके, थैंक यू. विल कीप ऑन लिसनिंग मी. मुझे तो लगातार सुनते रहोगे. अभिषेक को सुनने का इतना मौका नहीं मिलेगा. आई रिक्वेस्ट अभिषेक टू फर्स्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस फ्रॉम योर एकेडमिक जर्नी टू द वट एवर दे आस्क. पहले 10-15-20 मिनट अपने हिसाब से वट एवर यू वांट टू स्पीक वी स्पीक. देन देयर विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन. थोड़ी देर में बैठूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा. जी सर. बैठो आराम से. खड़े होके भी बोल सकते हो, जैसे आपको ठीक मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बैठ गया. मैं भी बैठ ही जाता हूँ. गुड इवनिंग एवरीवन. As you all know, my name is Abhishek Sharma. I am a resident of Agra, Uttar Pradesh. As sir mentioned, this was my third attempt, but this was my first mains. So in the previous 2 attempts, I was not able to qualify prelims. I just wanted to ask, is everybody comfortable with Hindi? Because I will be bilingual. Yeah. So this was my third attempt. I could not qualify prelims. Maybe I'll tell you going ahead कि क्या गड़बड़ मैं कर रहा था पिछले 2 attempts में, which might help you. I just wanted to know sir, मतलब अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं, पूछ लो सबको. हाँ, मतलब आप लोग वो हो जो अभी क्लास शुरू कर रहे हो फिजिक्स की, या ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या सब मिक्सड है?
अच्छा 99% तो जीरो वाले हैं, फर्स्ट जो टाइम अभी है जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक आध है जो पुराने है, बट अदर देन 1 or 2 एवरीबडी इज न्यू। ठीक है सर। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। मैं स्टाफ वार्ड था, मेरे पापा पढ़ाते हैं उसी में। एंड देन उसके बाद मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो आई वेंट टू NIT भोपाल। आई डिड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। एंड आई थिंक सेकेंड ईयर, अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। पहले 6-8 महीने GS पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ़िज़िक्स ऑप्शनल लेना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था डिसाइड करने का, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट फ़िज़िक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद था व्हेन आई वाज इन 11th-12th, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो जेई में जो मेरे जितने भी मार्क्स हैं उसमें 60% मार्क्स फ़िज़िक्स के ही थे। केमिस्ट्री में नहीं आए थे अच्छे नंबर, तो आई वाज श्योर कि आई लाइक द सब्जेक्ट। उस समय आइडिया नहीं था कि फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, जब डिसाइड किया था कि मुझे ऑप्शनल लेना है। बट माई फादर न्यू वाजपेयी सर बिफोर मी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू गाइडेंस की टेंशन मत ले। देयर इज़ दिस टीचर कॉल्ड DP वाजपेयी सर, वो जितनी तेरी एज है उससे ज़्यादा सालों से फ़िज़िक्स ही पढ़ा रहे हैं, और फिज़िक्स का कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो उनसे पढ़ा होता है। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। तो आई वॉज मतलब उस फ्रंट पे मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था कि गाइडेंस तो मिल जाएगा। तो फिर मैंने एक बार सिलेबस देखा, थोड़े से क्वेश्चंस दिखे, फेमिलियरिटी लगी, तो मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा कि कितने लोगों के 300+ आते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं सोचा कि रिजल्ट कैसा रहता है इसका, बस मुझे वो सब्जेक्ट पसंद था इसलिए मैंने ले लिया। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ़ यू इधर आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर आपको सब्जेक्ट पसंद होगा। सर मैं बताऊं, मुझे जो लगता है ना, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहा फिज़िक्स में, वो ये था कि मुझे फ़िज़िक्स आती ही नहीं थी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, और मुझे अभी भी फ़िज़िक्स नहीं आती है। मेरे लिए फ़िज़िक्स बस इतनी है जितनी सर ने मुझे पढ़ाई है। एंड आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट ही है। मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ एग्ज़ाम में कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता ही नहीं है। आई जस्ट फॉलोड वॉट वॉज टोल्ड, टू बी वेरी फ्रैंक। जो बताया गया वो करता गया, अपना बेस्ट करने की कोशिश की उसमें, एंड आई थिंक इवेंचुअली इट ऑल वर्कड आउट। नाउ आई थिंक आई लाइक टू कीप दिस सेशन इंटरेक्टिव। तो अगर आप लोगों को भी कोई भी डाउट्स हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिक्स बट इन जनरल भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक दैम। जीएस के साथ फिजिक्स को मतलब डायरेक्टली कैसे चलाते हैं? एक बहुत इंस्टीट्यूट कहते हैं कि मतलब ऐसे 2 घंटे जीएस पढ़ो, 2 घंटे पेपर, 2 घंटे फिजिक्स। ये ज़्यादा मतलब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए अपने हफ्ते में 2 दिन फिजिक्स या 5 दिन जीएस? इतना रिजिड मतलब होना क्यों है? सी द थिंग इज़ मेक टारगेट्स कि मुझे 2 हफ्ते बाद मैकेनिक्स रिवाइज करना है। जैसे अभी आप शुरू ही कर रहे हो पढ़ना, तो आई थिंक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि आप सर की क्लास करो, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो तो जाके एक बार वो चैप्टर देखो, एंड दैट उस दिन के लिए आपके लिए फिजिक्स हो गई। बस सर जो क्लास में बता रहे हैं उसके नोट्स बनाते रहो, जिससे बाद में आप रिवाइज करो तो दोबारा से उतना ज़्यादा टाइम ना लगे। आई थिंक बैलेंस उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना हम अपने मन में बना लेते हैं उसको। द थिंग इज़ व्हाट हैपेंस इज, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना तो हमारा दिमाग कहता है यार जीएस छूट रहा है, जीएस पढ़ लेते हैं। और जब जीएस पढ़ रहे हैं तो दिमाग कहता है कि नहीं यार फिजिक्स छूट रही है। एटलीस्ट जो जब पढ़ रहे हो उसको तब पढ़ो, एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा फेस करोगे नहीं आप। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और आंसर को फाइनल कर देता हूँ। देखो जब मैं बोलता हूँ उसके बाद फाइनल हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कहीं नहीं होती है दुनिया में। चाहे मैं पॉलिटिकल मीटिंग को भी एड्रेस कर रहा हूँ ना, अगर 200-500 लोग बैठे हैं और मैंने बोल दिया तो कि मैं अध्यक्षीय भाषण देता हूँ, प्रेसिडेंशियल स्पीच। प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाद देयर इज नो क्रॉस क्वेश्चन, आई एम पुटिंग फुल स्टॉप टू आंसर। स्ट्रेटजी मस्ट बी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव लेटेंट एनर्जी विद इन यू। 8-10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, अगर है तो ठीक है। अगर 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो तो पहली स्ट्रेटजी जो टॉपर्स की होती है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जाम पास करते हैं, वो स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी ये है कि जून से शुरू करना होता है। जैसे आज 2 जून है ना, आज से शुरू हो रहा है। फर्स्ट 5 महीने में नवंबर तक ऑप्शनल पूरी तरीके से अच्छे से खत्म हो जाए ऑप्शनल, तो उसके लिए 2 घंटे की क्लास और कम से कम 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। IIT से पढ़ के आए इंजीनियरिंग फिजिक्स तो हो सकता है 3 घंटे में हो जाए, नॉन IIT हो तो 4 घंटे 5 घंटे लग सकता है सेल्फ स्टडी करने में, जितना मैंने 90 मिनट्स पढ़ाया है। मतलब एंड रिजल्ट ये है कि 5 महीने में, मैं तो 4.5 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा, 5 महीने के अंदर आप इस कैपेसिटी में हो कि अगर आपको कल मैं एग्जाम दे दूं कि आपको मेंस का पेपर देना, तो 2-3 महीने में रिवाइज करके मेंस का पेपर देने की कैपेसिटी हो। एक बार पूरा ऑप्शनल फैमिलियर हो गए, सारे डेरिवेशंस आपके फिंगर टिप्स में आ गए। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे शुरू के 5 महीने की, जब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब 5 घंटे तुमने फिजिक्स में लगाए,
दिन के 3 घंटे तो फिर भी बच गए ना, 3-4 घंटे। वो 3-4 घंटे क्या करोगे, उसमें रोज जीएस पढ़ोगे, क्योंकि फिजिक्स एक मोनोटोन, अगर रोज 8 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे ये संभव ही नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो संभव ही नहीं है आदमी के लिए कि कहोगे पूरे दिन फिजिक्स ही पढ़ता रह जाऊं, बंद पागल हो जाओगे। अगर फिजिक्स 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हो तो फिजिक्स कितना पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे की घर में जाके सेल्फ स्टडी। मूड रिफ्रेश करने के लिए, मूड बदलने के लिए आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप जीएस शुरू में क्या पढ़ो, कुछ नहीं जानते हो, तो आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना सीखो। पहले तो हमारे जैसे किसी एक्सपर्ट की न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास कर लो एक दिन, कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छे से 1-2 घंटे कम से कम 4-5 महीने में सीख जाओ। फिर इस 4-5 महीने में 1-2 जीएस का कोर्स पूरे फैमिलियर कर लो। जैसे कि सबसे पहले क्या जरूरी है जीएस, ज्योग्राफी या पॉलिटी, ये एसेंशियल है कि ज्योग्राफी अगर जानते हो तो सब कुछ बिल्टअप हो जाएगा उसके ऊपर। ज्योग्राफी या पॉलिटी, दोनों में से एक कोई कोर्स या दोनों कोर्स इस 5 महीने के अंदर अखबार पढ़ने के साथ 1.5-2 घंटा अखबार पढ़ने में लगाओ, 1.5-2 घंटे आप पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो खत्म कर लो 5 महीने के साथ। 2 जीएस के पेपर खत्म हो गए। अब नवंबर से जैसे आपका खत्म हो गया सब्जेक्ट, ऑप्शनल खत्म हो गया, ऑप्शनल का आपको सारा ओवरव्यू मिल गया, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर का मोटे तौर पर मालूम पड़ गया क्या करना है। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि अगर मुझे प्रीलिम्स पास हो जाए तो मैं 2-3 महीने में पूरी फिजिक्स को मैनेज कर लूंगा। ये डेवलप हो गया, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने की स्थिति में पहुंच गए हो। अब आप नवंबर से दिसंबर से रिवर्स कर दो, रिवर्स 8 घंटे पढ़ रहे थे ना, 8 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे आप जीएस को पढ़ो और 2 घंटे ऑप्शनल को पढ़ो। ऑप्शनल को नेग्लेक्ट मत करो, यू रीड इवन ऑप्शनल अप टू अप्रैल, बट 2 आवर्स अ डे, ताकि आप यू आर इन टच, यू डू नॉट forget any one of the derivations, otherwise you will lose track of whatever has been done. Do that up to April. अप्रैल का महीना, मई का महीना एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स। उसमें टाइम मैनेजमेंट का और कैसे कितने क्वेश्चन करने से कितना स्कोर आता है, क्या आपका स्कोरिंग पैटर्न है, वो सब आपको 2 महीने में डिफरेंट टेस्ट सीरीज करके आप मास्टर कर लोगे। बट कंटेंट आप जीएस 6 महीने पढ़ा है आपने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने तक आप रेगुलर जीएस ही तो पढ़ रहे हो। 6 मंथ्स में पूरा जीएस मास्टरी कर लेना चाहिए आपको। क्या छोड़ के, इथिक्स का पेपर छोड़ दो और आईआर छोड़ दो, 2 चीज़ें छोड़ दो। इथिक्स और आईआर जो है, जो मेंस का जो प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें बिल्डअप किया जा सकता है। सो आई मीन वट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम फाउंडेशन कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग अप फ्रॉम द फिजिक्स कोचिंग ऑनवर्ड्स, एंड फिर उसके बाद दिसंबर से रिवर्स करो कि 7 hours for the GS and 2 hours for the optional. That is the best strategy. Answer close. Next, किसी को और कुछ पूछना? अब हाँ, मेरे से पूछना है कुछ? हाँ. You are from engineering background. Right. Being an engineering student, you know that you have some resistance to study the humanities subjects. How did you cope up with that? I know I had to study humanities subject, और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मेरे को सच में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो मैं इस प्रिपरेशन में आता नहीं, और ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस था भी नहीं जितना स्टीरियोटाइप बना रखा है कि इंजीनियर हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता या पॉलिटी नहीं पढ़ पाता। मुझे तो और इंटरेस्टिंग लगती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ी है यार, मैंने ये पढ़ा है कि पढ़ते कैसे हैं, मैंने ये पढ़ा है कि किसी सब्जेक्ट को एंजॉय कैसे किया जा सकता है। आई थिंक वो सारी क्वालिटीज़ जो एक्वायर की थी कॉलेज में वो यहाँ हेल्प ही करी। नज़रिया बदल जाता है सब्जेक्ट्स को देखने का। अब मैं ज्योग्राफी सिर्फ रट नहीं रहा था, मैं समझ रहा था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी इंजीनियरिंग करते करते। तो आई थिंक पहले तो दिमाग से इस नोशन को हटाओ कि इंजीनियर्स हेट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। ऐसा होता तो रिजल्ट ऐसा नहीं होता जैसा हर साल आता है ना। तो आई थिंक ये जो भी है सिर्फ मेंटल लेवल पे है रोड ब्लॉक, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। So you were telling about your prelims and why did you not succeed in that first prelims? सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो देयर वर गैप्स इन माय प्रिपरेशन, वेरी ब्लेटेंट गैप्स, जो मैंने छोड़ दिए थे ये सोच के कि यार एक ही सवाल तो आएगा, नहीं करूँगा, कौन से 100 सवाल सही करने होते हैं। डोंट थिंक लाइक दैट, दिस इज़ अ स्लिपरी स्लोप। मुझे नहीं पता था कि मैं उस समय इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा हूँ। इस तरीके से एक बार सोचना शुरू कर दिया ना तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर आपको जो भी चीज़ पढ़ने का मन नहीं होगा ना, आप खुद को ऐसे जस्टिफिकेशन दे दोगे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि गैप्स थे मेरे प्रिपरेशन में। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने वो गैप्स फिल किए, लेकिन मैंने वो MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पाया। MCQs की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो अगेन एज अ स्किल एक्वायर हो जाएगा, आपके मसल मेमोरी में आ जाएगा कि भाई आंसर तो इन 4 ऑप्शंस में से ही है। अब मैंने अगर नहीं पढ़ा तो भी आंसर इन 4 में से है,
वो आंसर ढूंढ के निकालना एक आर्ट है, जिसका पहला स्टेप है नॉलेज। मैं वहीं रुक जा रहा था पहले 2 अटेम्प्ट में, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था प्रीलिम्स एक एग्ज़ाम है जो सिर्फ ये टेस्ट कर रहा है कि मैं कितना रट सकता हूँ, बट वो गलत था। प्रीलिम्स बहुत चीज़ें इसके अलावा भी टेस्ट करता है। इट इज़ नॉट एन एग्जाम ऑफ रोट लर्निंग, इट इज़ एन एग्जाम ऑफ ओवरऑल स्मार्टनेस ऑफ अ कैंडिडेट। तो आई थिंक वो 2 चीज़ों पे मैंने काम किया। मैंने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल गेसिंग के ऊपर काम किया। तो इस बार मेरा फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर हुई थी प्रीलिम्स में। तो स्टैंडर्ड बुक्स में कितना रिलाई करना पड़ता है या फिर पीवाईक्यू रिलेटेड प्रैक्टिस से हो जाएगा? अच्छा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं करी, ऑल्दो मैं सर से लेके गया था इस उम्मीद में कि अगर इस बार मेरा नहीं निकलता है तो अगली बार मैं लगाऊंगा सॉल्व एग्जाम्पल्स। सर से ही किताबें ली थी मैंने, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं किया। सर के नोट्स जिसमें काफ़ी सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस ऑलरेडी थे, फिर खुद से बैठ के पिछले दोनों अटेम्प्ट में भी सभी पीवाईक्यूज़ के मॉडल आंसर्स बनाने का ट्राई किया, सॉल्व करने की कोशिश की। जो डाउट होता था सर के पास ले आता था, पूछ लेता था, समझ लेता था। कभी कभी बहुत सिली होता था तो डांट भी पड़ती थी, बट उसी से समझ आता था कि यार इतनी सी चीज़ें समझ आनी चाहिए थी खुद से। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस और सर के नोट्स पे रिलाई किया। डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। वो सर ने जो बोला ना कि उल्टा लटकना पड़ेगा, एक बार वो बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कर लो, डेरिवेशंस फिंगर टिप्स पे ले आओ। पहले भी सभी टॉपर्स ने यही बोला था, तो मैंने बिना सोचे समझे बस वही फॉलो किया। बुक्स यूज़ करना या ना करना वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, उससे आई थिंक न्यूमेरिकल में थोड़े से अच्छे हो जाओगे आप अगर सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे। बट अभी सर ने मुझे दिखाया, सर इज़ प्रिपेयरिंग सम डॉक्यूमेंट्स जिसमें उन्होंने ऑलरेडी नोट्स के साथ ही सॉल्व एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर दिए हैं। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है फिजिक्स ऑप्शनल में अब, कि आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको सब एक जगह मिल जाएगा। एनीवे आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप पीवाईक्यूज़ की करो चाहे सॉल्व एग्जाम्पल्स की। मैंने बुक्स ज़्यादा नहीं फॉलो की थी। एक बात जस्ट ऐड कर दूं कि अभिषेक को पेपर 2 में हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है भारत में, ये ध्यान रखना। 165 मार्क्स ही हैज गॉट इन पेपर 2, इससे ज़्यादा किसी को नहीं आया है। पेपर 1 में तो इसके, फिर पेपर 1 का जरा हिसाब बता दो पहले इनको। पेपर 2 में इनको हाईएस्ट मार्क्स है 165, और पेपर 1 में इनकी कुछ स्लिप देख के छोड़ दिया कोई। ऐसा हुआ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरे से पेपर 1 में, पता नहीं क्या हुआ सर। मैं हर आंसर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उस पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने लग गया कि 6 की जगह मेरे को 6.5 मिलने चाहिए इस क्वेश्चन में, तो मेरा 50 नंबर का छूट गया पेपर 1 ऑप्शनल में। उस टाइम में मुझे लगा था कि ख़त्म हो गया ये अटेम्प्ट, इतना थोड़ी छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। 50 नंबर बहुत होते हैं, वो भी मेंस में जहाँ एक नंबर की फ़ाइट है। तो इसलिए मेरे पेपर 1 में 109 मार्क्स रह गए। उसके बाद मैंने ट्राई किया पेपर 2 में मैक्सिमाइज़ करने का, तो आई गॉट 165। बट यू कैन नॉट डू दिस ब्लंडर। मुझ पर आशीर्वाद का हो, कृपा का हो गया पेपर 2 में मैनेज, वरना अगर थोड़ा सा भी कम होता था। हमेशा पेपर 1 में इसको हमेशा जो पहले कॉपी टेस्ट जांची थी, हमेशा 138 मतलब 140 के आसपास ही मार्क्स दिए मैंने। हर 4 टेस्ट लेता हूँ पेपर 1 के, 4 टेस्ट हम पेपर 1 के लेते हैं। चारों टेस्ट पेपर्स में इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और जब इसने लिखा, इसने मुझे व्हाट्सएप में लिखा एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले तो मैंने किसी की कोई कमेंट सुनता ही नहीं। जब पूरा एग्जाम हो गया, अब इसने मुझे लिखा मेरा 50 नंबर है। मैंने कहा फिर भी कहा तो पास जरूर हो जाएगा। आई वॉज नॉट श्योर कि विल गेट 38 रैंक, बट आई न्यू दैट ही हैज टू क्वालीफाई because his paper 1, paper 2 was quite good. I asked, paper 2 was quite good. So he deserved much more marks in paper 1. 140 डिजर्व करता था कम से कम। 140 अगर आ जाता तो 305 हो जाता। हर टेस्ट में 138 से ऊपर ही था पेपर 1 के। पेपर 2 में भी हो सकता। तो इससे आई थिंक 2 बातें तो आप ये सीख सकते हो कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, है ना। और जैसा कि सर ने बताया कि जीएस को नेगलेक्ट मत करो। इफेक्टिवली मेरे 274 नंबर आए, तो सर मैं ए ग्रेड से 1 नंबर कम ही रह गया, बट फिर भी ये रैंक आ गई क्योंकि जीएस के 2-3 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर हैं। एंड 273 अगर बाकी ऑप्शनल से कंपेयर करो, जो फिजिक्स का एवरेज स्कोर है वो बाकी जगह आउटस्टैंडिंग स्कोर माना जाता है। तो आई थिंक इट्स अ रिलेटिव कंपटीशन। लास्ट में मैं बस यही दुआ कर रहा था कि 100 नंबर क्रॉस हो जाए पेपर 1 में, तो मैं उस रेंज में आ जाऊँ कि फिजिक्स की वजह से अगर बन ना पाऊँ आईएएस, तो फिजिक्स की वजह से रह ना जाऊँ बनने से कहीं। तो आई थिंक वो हो गया, उतनी सुन ली भगवान ने, एंड आई एम हैप्पी। ऑल इंडिया रैंक 1 से 1 नंबर ज़्यादा है। उसको उसका 273 अभी मैंने दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। हाँ सर, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हार नहीं माननी है। मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था पेपर 1 के बाद कि यार ये, क्योंकि तब तक थोड़ा फ्लॉलेस सा जा रहा था मेंस, हर एग्जाम अच्छा हो रहा था, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे क्वेश्चन जो सबके होते हैं, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ ब्लंडर नहीं हुआ तो आई विल गेट थ्रू। बट वो पेपर 1 के बाद लगने लगा कि गया यार ये वाला अटेम्प्ट भी, पता नहीं फिर जो होना था हो ही गया। आई डोंट नो हाउ। एंड यू डिजर्व।
your mark, your typical presentation of answers was very good. Whatever the style of presentation you had in physics, same thing you must have done in GS also. जी सर। So इसलिए GS में अच्छे नंबर है ना, GS में बहुत अच्छे मार्क्स, फिजिक्स में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। 273 is good, 274 is good marks, and पेपर 2 is outstanding. पेपर 2 तो 100% आउटस्टैंडिंग, इससे ज़्यादा तो किसी का नहीं है। पेपर 1 में 50 नंबर छोड़ने के बाद भी अगर 109 है, pretty good marks. थैंक यू सर। आई थिंक फिजिक्स की स्ट्रेटजी मैं सोच रहा था डिटेल में डिस्कस करना, फिर मुझे लगा सर कि वो आप नहीं मुझे आज का सो ही नहीं नहीं आप आज नहीं बताएंगे, रोज एक टॉपर स्टॉक होगी आपके सामने क्लास में, अगर आप सर की क्लास ज्वाइन कर लोगे तो वो सर की टॉक ही टॉपर स्टॉक की तरह ही होगी, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं बस अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो बस यही बोलूँगा तुमसे, एंड इस बात को लिख लो अभी कि जो सर बोले वो कर लेना बस, क्योंकि आप सबकी भी एज से ज़्यादा उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इस एग्ज़ाम को वो 20, 25, 30 साल से बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो वो बहुत शाना मत बनना सर के सामने कि नहीं मुझे आता है। आपको ऑलरेडी आता होता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, सर यहाँ नहीं बैठे होते। मैं बहुत 3 साल से उस कुर्सी पे बैठ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, तो इसका श्रेय बस ये है कि मैंने सुन लिया सर ने जो बोला, बिना अपना ज़्यादा दिमाग लगाए मान ली सर की बात। ठीक है, जब हम कर रहे होते हैं ना ये चीज़, तो ऐसा लग रहा होता है कि हम रिस्क ले रहे हैं, क्या पता सर जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए काम ना करे। अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार सर से आके बात कर लो, हो सकता है आप वो चीज़ कर ही गलत तरीके से रहे हो जो सर ने बोला है। दिस कैन हैपन, सर ने जो बोला है वो गलत नहीं होगा, आपका उसको करने का तरीका गलत हो सकता है। आप सर के पास आओ, सर से बोलो कि सर आपने बोला था ऐसे ऐसे, मेरे से हो नहीं पा रहा, तो सर आपको मे बी कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे, बट इतना एक्सपीरियंस है आपके सामने तो क्यों ना उसका फ़ायदा ले लो, दैट्स इट। तो मेरी पूरी स्ट्रेटजी यही थी कि सर जो स्ट्रेटजी बताएं वो सुन लेना, फॉलो कर लेना टू द कोर, ट्राई लाइक हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं इस एग्ज़ाम में, ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स। आई विल से बहुत सारी बातें बहुत सारी जगह सुनी होंगी आपने सबके बारे में, सर के बारे में, टीचर्स के बारे में। हमेशा याद रखना कि जब तक आपके टीचर्स का आशीर्वाद नहीं रहेगा ना आपके साथ, एज आई टोल्ड यू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन। मैं पेपर 1 में ज़्यादा कंफर्टेबल था पेपर 2 से, फिर भी 50 नंबर का छोड़ के आ गया। आई थिंक एट लास्ट एवरीथिंग हेल्प्स यू, जितने भी लोगों का, बड़ों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का आशीर्वाद भी है, आई थिंक वो भी सब काम आता है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज अगेन सर इस एग्ज़ाम में लक का, डेस्टिनी का रोल भी है। राइट, जस्ट कीप एवरीथिंग टुगेदर। बाकी फिजिक्स के बारे में आपको बहुत सारे टॉपर्स और बताएंगे जिनके 300 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। आई थिंक यू शुड लिसन टू देम मोर। मेरे चाहे पेपर छूटा भी, बट आई थिंक 274 ही हैं, तो आई विल कीप दैट लिमिटेड। बाकी और कोई हेल्प इसमें मैं करेक्ट कर देता हूँ, चाहे तुम्हारे 274 भले ही आए हो, बट यू डिजर्व टू बी 315 प्लस। मेरी टेस्ट सीरीज में तो आते थे ना तुमको, पेपर 2 में तुम्हारे आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं, पेपर 1 में भी मेरी नज़र में 140 ही है। 50 नंबर का छूटना, 50 नंबर में अगर मैं 30 मार्क्स भी दे देता तो 39 तो हो ही जाते हैं ना कम से कम। 60 एंड फॉर यू एवरी पेपर आई यूज्ड टू गिव 65% मार्क्स। जी सर, ही हैज परफेक्टेड माय 65% क्राइटेरिया। अभिषेक इज दैट पर्सन हु आइडेंटिफाइड कि पास तो हो ही जाएगा कम से कम। इनफैक्ट व्हेन ही सेड कि 50 मार्क्स का छूट गया, तभी भी मैंने कहा कि तू पास हो ही जाएगा, क्योंकि आई न्यू ही हैज परफेक्टेड द 65% क्राइटेरिया। बेंचमार्क है 65% मार्क्स से बेंचमार्क, मतलब आपका आंसर आउटस्टैंडिंग है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया हो गया है। तो अगर आपने स्टाइल इवॉल्व कर ली है तो फिजिक्स में भी वैसे ही लिखोगे, जीएस में भी वही लिखोगे, एसए में भी वही लिखोगे, स्टाइल तो वही होगी। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप नीट एंड क्लीन लिख रहे हो, आप होलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यू विल डू द सेम थिंग इन एवरीवेयर एल्स आल्सो। सो इट्स एवरीथिंग पेड ऑफ। सो आप सेमिनार का पूरा फायदा उठाएं। अगेन इस चीज़ पे जो सर ने बोला ना, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इस पे भी काम करना है आपको बहुत ज़्यादा। बट ये उसके बाद आते हैं, जब आप पहले 5 नंबर लाने का काम निपटाओ, एक बार 5 नंबर आने लगे कंसिस्टेंटली, तब वो 5 से 6, 6 से 6.5 का सफ़र होता है। सर जैसा आप बोलते रहते हो कि अब आप अभी अगर नेक्स्ट क्लास में सर से आके क्वेश्चन पूछोगे कि सर 6.5 नंबर कैसे लाते हैं, तो सर आपको डांट के भगा देंगे। सर ये बोलेंगे पहले 5 नंबर ला रहे हो तुम एक क्वेश्चन में, 5 नंबर तब आएगा जब तुम्हारा आंसर सही निकलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन बिल्ड ऑन टू दैट। वैल्यू एडिशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन और बेटर कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी सर जो आपने जांची हैं कॉपीज़, वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हैं, धीरे धीरे कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे मिल रही हैं। तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, सर भी टॉपर्स की कॉपीज़ दिखाई देंगे आपको, आप अगर कहोगे तो। सर के पास पिछले 10-12 साल के टॉपर्स की सबकी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। हमारी भी है। हाँ, तो मैंने भी देखी हैं वो कॉपीज़। मेरा क्या होता है, इसका भी सिस्टम बताऊँ। जिसको हाईएस्ट मार्क्स देता हूँ, जिसको मैं जांच के 140 क्रॉस करता हूँ, जैसे 100 मैंने कहा कि 80 100 के नीचे अगर आ गए तो मैं नॉर्मली मेरे एजेंडा में नहीं है, लेकिन जो 140 से ऊपर लाता है मैं उसकी कॉपी स्कैन करा के रख लेता हूँ। सिर्फ मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर अपने स्टाफ को है कि जिसको भी 100 से ऊपर मैंने मतलब 140 के ऊपर दे दिया है, लेट ऑल आंसर शीट्स बी स्कैन
क्योंकि वो पता नहीं देगा कि नहीं दूसरे को। बहुत सारे टॉपर आरजीगिरी भी करते हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग भी करते हैं, कॉपियाँ नहीं देना चाहते अपने। हमारे पास पहले से ही हो जाती है। वी हैव गॉट एक्सेस टू ऑल आंसर शीट्स whomsoever I have given more than 140 मार्क्स। अब उसमें से पास हो जाते हैं तो हम डिस्प्ले कर देते हैं आंसर शीट्स को। और सर की टेस्ट सीरीज में क्या है, जो सर आंसर्स प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें जिस भी इंसान को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले उस क्वेश्चन में उसका आंसर लगाते हैं उन सॉल्यूशंस में। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ सर कि मेरे भी कुछ आंसर्स लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मॉडल आंसर्स देख के कि चलो वो लेवल तो अचीव हो गया कि सर उस आंसर को लगा दे रहे हैं अपने सॉल्यूशंस में। आई थिंक मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो था, लास्ट में आई क्रम्बल्ड थोड़ा सा, बट ठीक है, होता है। क्या है, बहुत सारी वो है टेस्ट सीरीज में, जैसे कॉपी आंसर छाप देना, हर एक का आप कोई ना कोई आंसर लिख देगा। आप जहाँ कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, किसी जीएस की दे रहे होंगे समझ लीजिए, तो मॉडल आंसर बनाना कौन सी बड़ी बात है, किसी को पेड आदमी को रख दिया जाएगा, मॉडल आंसर बना देगा वो। आई डू नॉट डू दैट इन फिजिक्स ऑप्शनल आल्सो। व्हाट आई डू, मैं सिर्फ 10 अच्छे लोगों की कॉपियाँ नाचता हूँ सबसे पहले। 10 अच्छा कौन, जो इस साल रैंक लाया, जैसे इस बार किसी को 318 नंबर आया और 600 रैंक है, किसी की और कम से कम 10 लोग तो फिर से एग्जाम दे रहे होंगे। ये 10 जब टेस्ट सीरीज देंगे मैं इनकी कॉपी नाच दूंगा सबसे पहले, और जांचने के बाद बाहर वाले को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, जिसको मैंने 6.5 नंबर दिया है वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हूँ। 6.5 7 मार्क्स, मतलब 6.5 से ऊपर जितने दिए हैं उन सब के आंसर को एक जगह रख के मॉडल आंसर तैयार कर दे। एंड सो आई पुट दैट इन डिस्प्ले दैट माई आंसर्स हैव गॉट मच मोर मार्क्स देन व्हाटएवर मार्क्स एनी टॉपर वुड हैव स्कोर्ड, क्योंकि मैंने तो 10 टॉपर के बेस्ट आंसर्स कलेक्ट करके दिए हैं। एंड यू नो हु आर द पीपल कंपीटिंग, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट। मतलब इस साल के मेंस जो टेस्ट सीरीज जो इस साल की है ना, इसी साल की है, तो इस साल के जो टॉपर्स हैं, जो द पीपल हु आर गोइंग टू कम्पीट विद यू, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग द आंसर्स, मतलब उनकी हैंडराइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, यू नो देम एंड फैमिलियराइज। यू हैव टू आल्सो bring your level to that level. If you can match that level, then only you are in the 5 top bracket 6.5, 65%. Otherwise 65% की तो 5 में ही नहीं हो। चलिए next. Sir, how did you maintain your cool during the Sorry, can you be louder? Sir, how did you maintain your cool during 3 attempts? The number of attempts is the topper. The AIR one had 6 attempts this year. The number of attempts scares me and it's आपका तो फर्स्ट ही है ना? मेरा तो फर्स्ट है सर, बट इट्स लाइक कि होगा नहीं होगा, एंड अभी से मतलब अभी तो मैं स्टार्ट ही किया है, तब से भी बहुत ऐसा लगता है कि क्या होगा कैसे नहीं। तो आपने 3 अटैम्प्ट्स दिए, तो आपने कैसे मतलब अपना बूस्ट रखा कि मेरे को करना है और गिव अप नहीं करना है? देखो, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, यूपीएससी प्रिपरेशन कैन बी अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, मुझे धोखे खा के धक्के खा के समझ आई कि भाई प्रीलिम्स क्या डिमांड कर रहा है, मेंस क्या डिमांड कर रहा है ना। अगर आपको नहीं आया तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, आ गया यू आर वेरी लकी भी साथ में, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। तो कोई भी लंबा रास्ता होता है ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये आप पहले से एक्सपेक्टेड रखो। डोंट एक्सपेक्ट अ फेरी टेल प्रिपरेशन कि मैं बस डेली 8 घंटे पढ़ूंगी, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाएगा। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस यहाँ सेट कर रखी हैं, आप ये एस्पायर करो करने का, बट अपने एक्सपेक्टेशंस में ये बात रखो कि लोज भी आएंगे, और जब वो आएँ तो आई एम श्योर कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से आपने प्रिपरेशन चालू की है। वो कुछ भी हो सकता है, मे बी आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, दैट इज़ द आंसर टू योर वाई। ठीक है, जस्ट कीप रिमेंबरिंग दैट जब भी आपका गिव अप करने का मन करे। मेरा भी क्या था सर, दूसरे प्रीलिम्स फेलियर के बाद मुझे लगा था कि सब तो कर लिया, नहीं निकल रहा प्रीलिम्स, छोड़ देता हूँ प्रिपरेशन, और वो डिसीजन बहुत ईजी था छोड़ना उस टाइम पर, बट कंटिन्यू करने की हिम्मत मुझे मेरे भाई ने दी, जिसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट था उस टाइम पर, जिससे मैं कंटिन्यू रख पाया उस मोटिवेशन को। तो कई बार बिना मोटिवेशन के भी पढ़ना पड़ेगा, कई बार लोज में भी खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि क्यों शुरू की थी ये तैयारी। आई थिंक ये सब का ध्यान रखो, और अभी से इतने नेगेटिव मत हो कि कोई 4 अटेम्प्ट दे रहा है तो मुझे भी लगेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम, अगर वो अच्छे से समझ में आ गई तो नॉट नेसेसरीली यू विल टेक दैट लॉन्ग। Ask the questions. If you will not ask the questions, then I will request him to speak something, and that seminar will get closed. अरे भाई, तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं भी, पूछ लो अगर कोई सच में कुछ भी डाउट है ना। मैं नहीं डांटूंगा, सर डांट देते हैं सिली डाउट्स पे, पर मैं नहीं डांटूंगा, तुम पूछ सकते हो। बहुत फायदा है, सर की क्लास सुनोगे तो पीछ के ही रहेगी। हाँ, वो एयरप्लेन एक बार टेक ऑफ कर जाएगा तो फिर कोई उसमें स्टॉप नहीं होता बीच में। तो आज सबसे कूल है, जब भी तब भी इतने एग्रेसिव है।
Actually, we get the question and we really start with preparation. Then only we will. Yeah, I get it. Like everything is, everyone is like. I know, I understand what you're saying. चलो, I'll share my Telegram channel. अगर बाद में भी during your preparation आपको कोई भी doubt हो ना, the comment section is on there. You can ask that. I try to respond to every genuine specific doubt, है ना. Don't be generic with your doubts. कि sir please guide me about UPSC. ऐसे doubts का मैं क्या ही reply करूँगा. But if the doubt is specific, I'll try to help you guys. So if you have nothing more to ask, I'll just finish it. I'll tell you broadly. वैसे सर ये सब बता ही देंगे. But 8 टॉपिक्स हैं मोटे मोटे फिजिक्स में, 2 पेपर, हर पेपर में 2-2 सेक्शन, हर सेक्शन में 2-2 टॉपिक. तो 8 टॉपिक में अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि 20-22 सॉलिड चीज़ें होती हैं जो आपको ढंग से पढ़नी है. जैसे सर क्वांटम मैकेनिक्स में 8-10 डेरिवेशन है जो अगर आप फिंगर टिप्स पे ले आए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ली, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान भी नहीं है, और बाहर से देखने में जितना कठिन लगता है उतना कठिन भी नहीं है. तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अभी ऐसा लग रहा होगा फिजिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है, सर ने आपको सिलेबस की एक कॉपी दी होगी, एक कोने से दूसरे कोने तक भरा हुआ है, ये कैसे ख़त्म होगा. बट एक एक करके सर क्लास में कराते चले जाएंगे और ये होता चला जाएगा. मेक श्योर आप समझ रहे हैं चीज़ों को, मेक श्योर आप उनको इंटरनलाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन. और जैसे सर ने बोला टच छूटने वाली बात, मेरे साथ हुआ था, पहले 2 अटेम्प्ट में हुआ था. मैं जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि वो डर था प्रीलिम्स ना निकलने का. तो जब दोबारा शुरू करता था प्रीलिम्स के बाद, तो ऐसा लगता था सब कुछ नया है, ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ. तो अगर आप कर सकते हैं तो उस टच को मेंटेन करके रखिए फिजिक्स से, देखते रहिए अपने नोट्स, प्रैक्टिस करते रहिए डेरिवेशंस की. फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, आपके पास सर हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने मेरे से पहले अपने ब्लॉग्स में बहुत कुछ लिखा है. तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट रिपीटिंग ऑल दैट. बट क्वालिटेटिवली जो बातें मैं बता सकता था, आई थिंक मैंने बता दिया सर फिजिक्स के बारे में. ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर वर्क के मतलब जैसे सॉल्व किया इसको छोड़ने का मन छोड़ दिया ऐसा. इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वो, क्योंकि सर क्लास में बहुत लिमिटेड कराते हैं, बट उतने लिमिटेड से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है पेपर में, 8 में से 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं. और यूपीएससी अभी ऐसा तो नहीं कर रहा है, वो चाहेंगे उस दिन कंपलसरी क्वेश्चंस में 3 डाल देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा छोड़ने का. हाँ, मैंने बस उतना ही पढ़ा था जितना सर ने पढ़ाया था, मेरा उतने से काम चल गया. लकीली वो ऑप्शंस क्वेश्चंस इस तरीके से अरेंज थे कि मैं चूज़ कर पाया उन टॉपिक्स को जो मैंने छोड़ा था. बट सर भी ये बात बताएंगे कि आपको दोनों पेपर में अगर आप कम से कम करना चाहो ना, तो हर सेक्शन में एक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी उस चॉइस का आपको फ़ायदा मिलेगा. जैसे पेपर 1 सेक्शन ए में मैकेनिक्स और वेव्स एंड ऑप्टिक्स है ना, तो कोई एक दोनों में से आपका ऐसा होना चाहिए कि इसका चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर दूंगा. ऐसे ही सेक्शन बी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स में कोई एक ऐसा होना चाहिए. एंड दिस इज आई एम सेइंग, अगर आप मिनिमम करना चाह रहे हो तो द बेस्ट केस सिनेरियो इज आप सब कुछ अच्छा कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ये प्रॉब्लम हो पेपर में कि यार मैं कौन सा करूँ, मुझे तो सब आते हैं. दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. ठीक है, लास्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ा था, तो आप ये मान सकते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सॉलिड स्टेट होता है जो अच्छे से किया था मैंने. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो PYQ बेस्ड टॉपिक्स हैं ना, जैसे बूलियन अलजेब्रा और के मैप मेथड, उनको मैंने अच्छे से कर लिया था, क्योंकि ये सर ने क्लास में भी पढ़ाया था. तो जो क्वेश्चन आए भी थे कंपलसरी में, 1-2 वो इन टॉपिक से ही थे, तो वो हो गया था. बट अभी से मत सोचो कि कौन सा सेक्शन छोड़ सकती हूँ. इट्स छोड़ना कुछ नहीं है, कोशिश करोगे कुछ भी ना छोड़ो. अभी यू हैव द टाइम टू फिनिश एवरीथिंग. Only one optional and you have to do everything, but it is a competitive edge. इसका जो नाम है ना ऑप्शनल, वो मिसनॉमर ही है, कोई ऑप्शन है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसके बिना एग्जाम निकलेगा नहीं. तो बस उसको बोलते ही हैं ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी. सर आपने जो पहला टेस्ट किया था फिजिक्स का, उसमें आपका मतलब स्टार्टिंग से 275+ होता था या ग्रेजुअली इंक्रीज होता था? यहाँ पे नहीं, अच्छा एक टेस्ट देते थे ना, तो जैसे सर ने बताया पहला टेस्ट मैकेनिक्स का था, वो क्वांटम मैकेनिक्स का था उस टाइम पे, और वो मेरे को पता था टेस्ट देना है, तो मैं 1 महीने से वही पढ़ रहा था, सारे PYQs लगा रहा था, इसलिए मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि मैं वही पढ़ रहा था. अगर सिर्फ मेरे को 7 दिन मिलते तो शायद इतने नहीं आते, क्योंकि पहला ही टेस्ट था. और फिर सर की क्लासेस, टॉपर कॉपीज देख देख के थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाया था कि किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आंसर्स को. कुछ टेस्ट ख़राब भी हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डोमिनेटेड टेस्ट होते थे तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाते थे या गलत सॉल्व कर देता था. मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी कंपलसरी क्वेश्चंस में शुरू में, क्योंकि उनमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, और जैसा मैंने बोला मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं की थी,
तो ओवर टाइम ही इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। और सर आपको बताएंगे भी कि अगर आप वो सही कर रहे हो ना पहले 5 क्वेश्चन, तो इवेंचुअली आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं उस क्वेश्चन उस पेपर में। तो वो एक जर्नी है न्यूमेरिकल्स की, वो प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों ने जीएस पढ़ लिया है, उसके बाद ऑप्शनल शुरू कर रहे हो या ऑप्शनल से ही शुरुआत हो रही है प्रिपरेशन की? चलो तो अब ऑप्शनल ऐसे पढ़ना कि बस ख़त्म करके रख दिया, एकदम अच्छे से कर लेना, नोट्स बना लेना बहुत ज़्यादा। मेरी 4 ही कॉपीज़ हैं फिज़िक्स की, अभी भी इतनी है, बस मैं उन्हीं को लेके घूमता रहता हूँ इधर से उधर। उतना ही फिज़िक्स आता है मुझे, उतना ही मैंने पढ़ा है, ऐसा ही कुछ करे ना। उसमें से भी शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल के बीच में आपके पास 4-5 दिन होते हैं, उसमें पूरी फिज़िक्स रिवाइज करना इज़ आई नॉट से इम्पॉसिबल, क्योंकि हो तो जाता है, बट ह्यूमंगस टास्क। तो उन 4 दिन में शायद मैं जितना पढ़ा हूँ उतना कभी नहीं पढ़ा लाइफ में। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, बट वो बाद की बातें हैं वो सब। अभी तो अच्छे से क्लास करो, सर जो टॉपिक समझा रहे हैं उसको समझो, नहीं समझ आए तो जाके बुक में पढ़ो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, ट्यूटोरियल शीट्स करो, मेक दिस अ रूटीन। क्योंकि ऑप्शनल को नेगलेक्ट मत कर देना अभी जीएस के चक्कर में, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हो। अभी अगर अच्छे से करके ख़त्म कर दिया ना, तो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी डन। लोग जीएस करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ऑप्शनल ये डिसाइड नहीं होता कि मेरा ऑप्शनल है क्या, एंड दे गिव द प्रीलिम्स। तो वो सेंसलेस ही है इस तरीके से प्रीलिम्स देना। तो एटलीस्ट अ बिग बर्डन ऑफ योर्स विल बी टेकन केयर ऑफ अगर आप अच्छे से कर लो। और अगर आप लोग चाहते हो किसी और चीज़ के बारे में, मतलब स्पेसिफिक डाउट ना भी हो कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, तो आई लव टू शेयर दैट। सर अगर आप कुछ चाहेंगे, मैं कुछ स्पेसिफिक जो बताना बताओ। मैं अपनी तरफ से तो सर बता चुका, तो अगर जो भी है जैसा भी है आप बोल सकते हैं। आई नो अभी आप शुरू ही कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे नहीं, बट फिर भी यार बहुत सारे दिए थे मैंने। नहीं फुल लेंथ मॉक्स नहीं, मैं डेली एमसीक्यू सॉल्विंग में ज़्यादा बिलीव करता था, तो 50-50 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में डेली ज़रूर सॉल्व करता था, वीकेंड्स पे मॉक्स देता था। मैंने जैसे बताया ना, मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, जिससे वो मसल मेमोरी में आ जाए, वो एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए। तो मैंने शायद कहीं मेंशन भी किया है कि 6 महीने में दिसंबर से आई थिंक प्रीलिम्स तक मैंने 10,000 एमसीक्यूज़ के आसपास सॉल्व किए होंगे, इंक्लूडिंग ऑल दी टेस्ट, टूल किट्स, बुक्स, पीवाईक्यू सब मिला के। तीन शिफ्ट में तो नहीं, आई थिंक 2 शिफ्ट्स में लिखना। हाँ, और जीएस और ऑप्शनल के बीच में भी आपको टाइम मिलता है 1 वीक का, यू कैन रिवाइज योर ऑप्शनल, तब जीएस की टेंशन नहीं होगी, तो सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना होगा तो वो कर लोगे। तो लिखने की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग मेंस लिखने के लिए। बहुत सारे लोग तो इसीलिए एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो 6 घंटे लिख ही नहीं सकते 2 दिन बैठ के। फ्राइडे को आपको सुबह ऐसे लिखना होगा, देन सैटरडे को GS1 GS2 शाम को, संडे को GS3 GS4 शाम को। तो GS4 का पेपर लिखते लिखते लिटरली खून आ जाता है उंगलियों में से। ये घाव अभी भी बना हुआ है मेरी उंगली में, जो मैंने मेंस लिखा है तब का। तो फिजिकली आपके अंदर उतना स्टेमिना होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से डेवलप होगा। अभी नहीं लिख पाओगे, अभी मैं आपसे बोलूँ आप 3 घंटे भी नहीं लिख पाओगे बैठ के, क्योंकि 3 घंटे लिखना मतलब 3 घंटे लिखना नहीं, 3 घंटे नॉन स्टॉप लिखना। अगर आप रुके तो आपका पेपर छूटेगा, आपको ये पता है। तो इसीलिए वर्क ऑन दैट एज वेल, है ना, कीप प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट फॉर लॉन्गर आवर्स। नहीं, डायरेक्टली जो आपके नोट से भिड़ेंगे या फिर स्टैंडर्ड बुक से सीधा 1 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे देखते ही, वो आई थिंक 35 to 40 के बीच में होंगे, तब जब आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे और 2 बच रहे होंगे, कुछ अराउंड 20-25। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होगे और 3 बच रहे होंगे, और कुछ होंगे जिनकी आपको हवा भी नहीं होगी। तो ऐसा ही होता है हर साल, चाहे कोई कितना भी बड़ा दिग्गज हो। आई थिंक 50 से ज़्यादा क्वेश्चन वो ये श्योर शॉर्ट तरीके से नहीं बोल सकता कि इसका यही होगा आंसर। दैट इज़ द नेचर ऑफ एग्ज़ाम। अगर सारी सवाल किताबों में से आने लगे तो सभी पढ़ के निकाल लेंगे ना। दे आर चेकिंग समथिंग एल्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम योर रोट लर्निंग एबिलिटी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि प्रीलिम्स एक रिलेटिव एग्जाम है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आसान क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आए जो मैंने अपने लिए सोर्स सेलेक्ट किया उसमें से आ रहा है, तो वो मैं गलत ना करूँ, वो मैं सही कर दूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कोई ऑब्सक्योर क्वेश्चन, तो वो कोई सही नहीं कर पाएगा। तो दैट वोंट
पुश यू बैक इन दैट रेस, आप किसी से पीछे नहीं होगे। यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि आप किसी से पीछे तो नहीं हो रहे। अब सिली क्वेश्चन जैसे इस बार आया था, डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ मिला था, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। आप पढ़ना शुरू करते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन या आर्ट एंड कल्चर में भी, तो आप सबसे पहले वही पढ़ते हो, वो गलत नहीं होना चाहिए। और वो आप कहीं से भी पढ़ो आर्ट एंड कल्चर, तो वो क्वेश्चन आप सही करके आओगे। इट्स अबाउट दैट। सर लगभग 1 साल हो गया है जो अभी टच में है नहीं, तो उसको फिर से स्टार्ट करने में देखो मैं एक बात बताता हूँ, शुरू में ऐसा लगेगा कि सब कुछ नया है, लेकिन जिस लेवल पे आपने छोड़ा था ना, उस लेवल तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा इस बार। इसको ऐसे समझो कि जब आप टेस्ट लिख रहे हो, मान लो 3 महीने आप टेस्ट लिखोगे, तो 3 महीने के एंड पे जाके मतलब आप शुरू करोगे, आप 12-13 क्वेश्चन लिख पा रहे होगे, है ना। 20 क्वेश्चन के टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ। करते करते 3 महीने आपने हर हफ्ते टेस्ट लिखे, तो आप उस स्टेज पे पहुँचोगे कि 19-20 क्वेश्चन 3 घंटे में हो जा रहे हैं। अब आप 1 साल तक टेस्ट मत लिखो, फिर जब आप लिखना शुरू करोगे, तब फिर आप 13-14 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करोगे। लेकिन इस टाइम वो 13-14 से 20 तक की जर्नी ना 3 महीने नहीं लगाएगी, 4-5 टेस्ट में यू विल रीच देयर। ऐसा ही फिजिक्स के साथ होगा। शुरू में लगेगा कि 1 साल से अगर नहीं पढ़ा कि सब कुछ नया है, कुछ नहीं आता, पहली बार पढ़ रही हूँ, बट बहुत जल्दी यू विल कैच अप अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है। तो एक बार फेमिलियरिटी बनते ही फिजिक्स समझ आने लगती है, तो उसका लोड मतलब हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पहले। तो अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स में? हाँ, तो मैं बस आपको यही बताऊंगा, मैंने तो नहीं किया, बट सर से सुन के ये बात सीखी है कि जो आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ते हो और लिखते हो और जो यूपीएससी की डिमांड है वो एकदम अलग है। तो कुछ यहाँ पे आके सीखने से पहले ना, पहले जो सीखा है उसको थोड़ा सा भुला लेना, क्योंकि आप बहुत सारी मैथ्स लिखते हो ग्रेजुएशन में, पन्ने भरते हो, और यहाँ पे आप मैथ्स लिखोगे ही नहीं, स्किप करोगे पूरे मैथमेटिकल स्टेप्स। यहाँ पे आपको डेरिवेशंस, नाम है डेरिवेशन, लेकिन फिर भी आपको मेजर स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली कि क्या इक्वेशन निकल के आती है तीसरे स्टेप के बाद। आप बस यहाँ पे ये लिखोगे कि r को 1/u पुट करना है और ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट रहेगा फिजिक्स को लेने का, है ना। तो फर्स्ट अनलर्न, वही ये मत सोच के बैठना क्लास में कि मुझे ऑलरेडी आती है फिजिक्स, क्योंकि आपको फिजिक्स आती होगी, लेकिन यूपीएससी में फिजिक्स में नंबर कैसे आते हैं वो नहीं आता अभी। तो टेक इट एज अ ब्लैंक शीट, मतलब एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर की तरह क्लास में बैठना। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन फिजिक्स था, और जो मेरी तरह जिन्हें आती ही नहीं है वो तो फिर इस मामले में लकी हैं। आई थिंक बाकी इंजीनियर्स होंगे जिनका ग्रेजुएशन फिजिक्स नहीं होगा वो। सर आपकी ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी यार ऐसे में एक तो मेरे मार्क्स मतलब एवरेज ही हैं, 105 नंबर हैं, तो मैं कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं। दूसरी बात ये कि मैं नेचुरली बचपन से लिखने की आदत है मुझे, मेरे पिताजी भी इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, तो वो हमको लिखवाते रहते थे, कुछ देते रहते थे घर पे असाइनमेंट के, ये लिखो वो लिखो, तो वो लिखने की आदत थी। तो मैंने अलग से कुछ किया नहीं, बस एसेज ही लिखे। दोनों प्रीलिम्स जब नहीं भी निकले थे तब भी लिखता था 3 महीने, इस बार भी लिखे 8-10 ऐसे, तीनों बार मिला के 30-35 ऐसे लिखे हैं। और जब आप इतने एसेज लिख लोगे तो आपके पास कंटेंट भी डेवलप हो जाता है और फ्रेमवर्क भी डेवलप हो जाता है। तो एल से एक एडवाइस जो मैं दूंगा वो यही है कि कीप राइटिंग, आप लिखते रहो तो आप अपने आप इम्प्रूव करते रहोगे। ऐसे में कुछ लोग कंटेंट भी एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं एक अलग जगह, एक अलग डायरी में, कॉपी में, आप वो भी कर सकते हो। मैंने वो नहीं किया था क्योंकि मुझे मोटी मोटी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि मैं बहुत बार लिखता रहता हूँ उनको। दैट्स इट अबाउट ऐसे। और मैं ये भी बता दूं कि अभी इस जगह बैठ के ना एग्ज़ाम थोड़ा सा अनअचीवेबल लगता है, मुझको भी लगता था। तीनों बार जब मैं प्रीलिम्स ना निकालने के बाद भी टेस्ट सीरीज़ लिखने आता था ना, तो मेरे अलावा क्लास में 40 बच्चे ऐसे होते थे जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। तो मेरे को लगता था कि यार मैं तो अभी इनसे इतना पीछे हूँ कि अभी तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा, फिर प्रीलिम्स निकालूंगा, फिर इनको मेंस में पीछे छोड़ूंगा, कैसे होगा। बट हो जाता है। यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। बहुत ज़्यादा दिमाग में आगे मत भागो, अभी जो करना है, आज जो करना है उस पर ध्यान दो, करते रहो। टेक इट फ्रॉम मी कि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ आप लोगों की तरह ही, बस जो करना था वो करता गया और इवेंचुअली हो गया। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लो इस चीज़ का। अनअचीवेबल लगता ही है बस, ये एग्ज़ाम है नहीं, क्योंकि हर साल 1000 बच्चे निकाल रहे हैं। आई नो अनसर्टेनिटी बहुत है इस एग्ज़ाम को लेके, बट डोंट लेट दैट डीमोटिवेट यू।
बेनिफिट किस तरीके से? आपको सब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा पसंद है, मैथ्स या फिजिक्स? ठीक है, फिर फिजिक्स ही ले लीजिए, सर ही पूरी क्लासेस लेंगे। सभी दोनों पढ़ाते हैं सर आप? हाँ, मैथ्स में एक पार्ट सर पढ़ाते हैं, डायनामिक्स। आई थिंक देखो, आपको मैथ्स आनी चाहिए तब आपको फिजिक्स समझ आएगी, वरना सर पहली क्लास में वो डेरिवेशन कराएंगे ना जब सर्कुलर मोशन का, तो आपको ये लगे, मेरे को लगता था क्योंकि मैंने बहुत साल से नहीं पढ़ी थी ना यार, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग छूट गई, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी मैथ्स और फिजिक्स, तो मुझे लग रहा था ये कौन सी भाषा में लिख रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे फिगर आउट, तो मैथ्स अगर आती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें, ऑल्दो एग्जाम में नहीं लिखनी पड़ेगी बट चीज़ें समझ आने में आसान होगी। मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो आई थिंक अगर आप फिजिक्स ले रहे हो तो भी आप एक तरीके से मैथ्स तो ले ही रहे हो। Maths is essential for physics. Without knowing maths, you cannot do physics. Without knowing physics, you can do maths. But vice versa is not true. If your maths is not good, physics will not work. Whenever someone asks me कि what is prerequisite, then I say maths अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि maths I do not teach for physics students. मुझे जहाँ कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की जरूरत पड़ेगी, I will usually use the identity. I will say that वे सब you familiarize yourself with the basic mathematics. इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, जो लैपलास ट्रांसफॉर्म मालूम होना, फूरियर ट्रांसफॉर्म मालूम होना चाहिए आपको. You must know what is the purpose. In fact, here you have to know the physical aspect of the mathematics. What is the purpose of curl? What is the purpose of divergence? What is the purpose of grade? What do they represent? That kind of understanding is much more than mathematics. Mathematics is simpler as compared to physics. Although syllabus of maths is twice than that of maths. फिजिक्स Than that of physics. Physics में सिर्फ 8 किताबें हैं, maths में 23 books हैं. And I had the opportunity of opting both. My subject is physics as well as maths. During my time there used to be 2 optionals. And I am a teacher of physics. I am a good teacher of physics because my maths is equally good. So I am a good teacher of physics because my maths is equally good. Physics is written in the language of maths. If your maths is not good, difficult. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है और आप जीएस लिखना चाह रहे हो, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है, you do not have command over the English and you are going to write GS, it is difficult. Similarly, if you do not have command over the maths, physics will be difficult to write. बट वो भी हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी नहीं है तो भी कर लोगे, बट फिर भी बेसिक मैथ से आप, मतलब यहाँ मैंने क्लास में देखा, आइदर यू हैव डन ग्रेजुएशन और यू आर एन इंजीनियर, सिर्फ 2 ही लोग ले रहे हैं ना फिजिक्स, कोई ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा नहीं ले रहा डिस्पाइट इट स्कोरिंग इतना ज़्यादा स्कोरिंग। उसका एक रीज़न ये है कि बेसिक मैथ्स एक लेवल की होनी चाहिए, उसके ऊपर यू कैन बिल्ड, मतलब धीरे धीरे आप समझ जाओगे, सीख जाओगे कि क्या रिप्रेजेंट करता है कर्ल, फिजिकली क्या होता है डाइवर्जेंस, है ना, वो सब हो जाएगा। जहाँ नहीं आए समझ में, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह जैसे मेरे को कई बार विजुअलाइज नहीं हो पाता था तो मैं रट लेता था, और क्या करूँ भाई, हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा था एफ एक्स के क्या चल रहा है, लेकिन आइडेंटिटी रट लूँगा, क्वेश्चन आएगा तो लगा दूंगा, मॉडल आंसर्स इतने बार प्रिपेयर कर लिए हैं, तो अगर नहीं भी आता तो इवेंचुअली यूल डू, लेकिन फिर भी एक डिसेंट लेवल की मैथ्स तो ज़रूरी है ही। थोड़ा ज़ोर से बोलो प्लीज़। और अभी जो हमारा फिजिक्स है वो 5 to 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो टाइम पीरियड उस टाइम पे बचेगा तो उसको जो मतलब ऐसा नहीं कि ये भूल जाएंगे, सबको याद नहीं। तो सर ने बोला ना 2 घंटे आप रोज़ पढ़ते रहना, एक बार ख़त्म हो गया ना फिजिक्स, देन फिर मैकेनिक्स से उठा के उसका रिवीजन चालू कर देना। मैकेनिक्स पढ़ा, नोट्स देखे, देखते गए, जो डेरिवेशन है उसको प्रैक्टिस किया, जो पीवाई की उसको खुद से सॉल्व किया, डेली 2 घंटे देते रहना उसमें, तो आप नहीं भूलोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भूल जाते हो। मैंने पता है कब करा था फिजिक्स, 2021 में पढ़ा था फिजिक्स। मैंने पेपर कब लिखा है, 2025 में मेंस, 4 साल तो मुझे भी हो गए। और मैंने सर का ऑनलाइन कोर्स लिया था 2021 में, वो 2018 या 17 बैच की रिकॉर्डिंग थी सर, तो फिजिक्स पुरानी नहीं होती है कभी। तो मैं जो इस साल पेपर लिख के आया हूँ वो लिख के आया हूँ जो सर ने 18 में पढ़ाया था। बस वही है कि उसको अब जैसे आपको 27 में लिखना है तो आप 26 वाली टेस्ट सीरीज़ लिखने के लिए सर से रिक्वेस्ट कर लेना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सर प्लीज़ मुझे भी लिख लेने दो, अटेम्प्ट मुझे अगले साल देना है, सर की कृपा रही तो लिख लेने देंगे, है ना, नहीं लिखने दें तो खुद से PYQ सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट। नहीं, कृपा तो खुद से अर्न करनी पड़ती है। कृपा का तो एकदम कॉन्सेप्ट है, कृपा तभी मिलती है जब आपको मैं 1 महीना दे दूंगा, 1 महीना, 1 month यू प्रिपेयर क्वांटम मैकेनिक्स, टिपिकली इन माई टेस्ट सीरीज 1 week,
But I will give you 1 month. Before 1 month, I will tell you that you have to prepare for quantum or atomic and molecular. And score 100 plus. My benchmark is 40%. If you are not scoring 40%, that means you have not done the efforts from your side. 40% नंबर नहीं आ रहा है, यूपीएससी में 65% 70% लाने की सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और इस एग्जाम में 40% तो स्कोर नहीं कर पा रहे हो। 40% स्कोर करने के लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बस अगर सारा सिलेबस सारा कंटेंट पढ़ लिया, अब मुश्किल से 100 पेज के नोट्स होने, नॉट मोर देन 100 पेजेस, वन टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स, हार्डली 100 पेजेस। 100 पेज को मास्टर कर लो तो 130 मार्क्स आएगा कम से कम, जो भी 100 पेजेस में लिखा हुआ है। अगर वो भी नहीं कर पाते, 1 महीने तुमको दिया गया, तुम इस एग्जाम को पास करोगे क्या? प्री नहीं पास होगा, प्री नहीं पास होगा। मतलब सर ऐसा क्लास में बोलते हैं कि 40% नंबर लाने के लिए बस घिसना आना चाहिए। हार्ड वर्क अगर तुमने कर लिया ना, हर डेरिवेशन 4 बार कर लिया, तो तुम 40% नंबर तो ले आओगे। 40 नहीं, 50 तक आ जाता है। हाँ सर, 40 तो मैंने मिनिमम जांचने के लिए बता दिया। 40 मतलब कुछ भी नहीं किया इस आदमी ने, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्योंकि मैंने तो वही किया था, बस मैं तो बस वही था, नोट्स जो थे वो घिसे थे बार बार कर करके 4 बार 5 बार 10 बार, क्योंकि मैंने तो किताबें पढ़ी नहीं, तो और ज़्यादा भी आ जाता है सर 50% से। 50 ज़्यादा भी आ जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, पेपर में उतने न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए हैं, क्योंकि पीवाई भैया किसी कोर्स में है क्या, आप टीचर से पढ़ रहे हो, उसी को पेपर बनाना है, 19 क्वेश्चन पूछने हैं, 6 टॉपिक हैं, 4 या 6 टॉपिक है किसी में, हर एक में 2-2 3-3 डेरिवेशन है, 50% पेपर डेरिवेशन का आना है। अगर वो भी नहीं लिख सकते, पेपर आउट है तुम्हारी नज़र में। जब मैंने ही पढ़ाया है, मुझे ही पेपर बनाना है, कितने नए क्वेश्चन बना दूंगा उसमें, जब यूपीएससी में डेरिवेशन पूछता है। सो इफ द पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्कोर 40-50% मार्क्स, दैट मीन्स he or she does not have, according to me, the latent energy required to qualify this exam. फाइट आपकी प्री के कंप्रेंशन में, सी सेट पेपर 2 में फाइट है, सी सेट का पेपर 2 ही क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर 1 को भूल जाओ। बहुत सरल एग्जाम है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे तो बहुत ही सरल एग्जाम है। जीएस के पेपर, एक बात और, तुमने बहुत बड़ी बात, मैं तुम्हारा वीडियो पूरा सुना था कहीं, अभी तुमने अभी किसी में दिया था, किसी में उसे पूरा सुना था मैंने, तो बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे भी अच्छी लगी। पेपर पूरा करना होता है, ये अभिषेक ने मुझे नहीं बताया, मैंने इसका वीडियो सुना और मुझे बात अपील कर गई, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ कि 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं 70-75 क्वेश्चन कराए पेपर प्रीलिम्स में, फेल ही हो जाओगे। आपको कम से कम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं मिनिमम। प्रीलिम्स पास करने का मेरी नज़र में, तब कुछ करेक्ट हो तो बता देना, क्योंकि तुम लेटेस्ट हो, में बहुत पुराने। प्रीलिम्स पास होने का क्राइटेरिया है कि जो बेस्ट प्रिपरेशन करके रहता हुआ आता है, बेस्ट बहुत अच्छे से कंटेंट पढ़ लिया है, उसको भी 40% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। अगर आपको 40 क्वेश्चंस आ गए हैं, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज वेरी नाइस। एक कैटेगरी की प्रिपरेशन तुमने कर ली है फाउंडेशन की, देन ओनली यू विल बी नोइंग 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। 40 यू नो, बाय स्मार्ट वर्क यू हैव टू मेक इट 50। स्मार्ट वर्क यू कैन मेक इट 50। 40 क्वेश्चंस यू नीड टू नो, 40 क्वेश्चंस यू आर नोइंग, यू हैव डन योर होमवर्क। उल्टा लटक लिए हो तुम, तब तुमको 40 आ जाएगा। अब बाकी क्या है, जैसे इसने बताया हुआ, मैं हर बार यही बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में तुमको 2 ये मालूम होगा, 2 चॉइसेस यू डू नॉट नो, दिस कैन नॉट बी आंसर्स। अगर 2 आपने एलिमिनेट कर दिए एंड 25 क्वेश्चन में 2 एलिमिनेट कर दिए आपने, इसका मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50% इज द चांस, दैट इज आउट ऑफ 2 ओनली आंसर हैज टू बी देयर। सो दैट मींस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस और हाफ ऑफ द क्वेश्चंस हैज टू बी करेक्ट। आपके 12.5 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, 12 क्वेश्चंस गॉट लेट अस से 24, so that I am able to calculate nicely। 24 में 12 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए, 12 गलत हो गए। अब 12 गलत में 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुआ, तो 3 मार्क गया। नेट कितना स्कोर हुआ? 9 क्वेश्चन। 40 आते थे, 9 और बढ़ गए, और आपका 24 किया है आपने, अभी 36 है। अब 36 में समझ लीजिए 18 क्वेश्चन आर मोर और 20 क्वेश्चन, another 24 क्वेश्चन, लेट अस से another 24 क्वेश्चन where you can eliminate one choice। Now what is the probability of being correct? 1/3। 24 में 1/3 फिर से करेक्ट हो गए तुम्हारे, 8 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। रॉन्ग कितना हुआ? 16 by 3 5.5, ठीक है, तो भी 3 इफेक्टिवली करेक्ट तो हो गए। 3 इफेक्टिवली वहां भी करेक्ट हो गए तुम्हारे। 49 plus 3 52। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड? 40 and 24 and 24 48, I mean 88 क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। आप समझ लो, तुक्का मार लो, 5-6 क्वेश्चन में कुछ और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के 90-95 क्वेश्चन यू विल मेक करेक्ट, 95 क्वेश्चन यू विल मेक attempt, and your how many you are making correct? 52।
90 करेक्ट किया था आपने नेट, तो गोइंग टू क्वालिफाई। तो 40 तो आने चाहिए ना। 40 लाने के लिए भी थंब रूल है। तुमने मेरे से जीएस की क्लास नहीं करी थी। जीएस की क्लास करोगे या मेरी जानकारी लोगे, मेरा सेमिनार सुनोगे, 40 क्वेश्चन ऐसे अंगूठे में तुमको पास करा दूंगा। 40 कुछ नहीं है। मेरा जीएस आउटस्टैंडिंग है। मेरी जीएस की मार्कशीट कभी देखोगे ना, आउटस्टैंडिंग मार्क्स। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक इंडिया ईयर बुक याद करो, इंडिया ईयर बुक 2000 भारत, अभी भारत हो गया उसका नाम, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से कर लो, जो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स बना दिया है। हमने सेल्फ हेल्प का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जीएस का डेवलप कर दिया है डैश ने। वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स क्या है, सिर्फ उसमें 11 किताबें हैं। 11 बुक्स आर देयर, 5 बुक्स एंड 5 हेल्प बुक्स, 5 tutorial sheets means objective questions and 5 content books. Those books are nothing but the collection of questions from NCERT books, Tamil Nadu state books, West Bengal state board books, whatever is relevant from examination. इस बार कम से कम 60 क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं। इकोनॉमिक्स तक के सारे क्वेश्चंस मेरे नोट से हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स कितने मेरे? 70 पेज के, ओनली 70 प्रिंटेड पेजेज, एंड आउट ऑफ दैट ऑल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैव बीन आस्क्ड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ द प्री, ओनली 70 पेजेज फॉर इकोनॉमिक्स। जाके देख लो, हम डिस्प्ले में लगे हुए हैं, और इस साल का प्रीवियस का पेपर देखो। गो थ्रू अवर नोट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ जनरल स्टडीज, along with that only 2 things I recommend. एक इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक इज एसेंशियल रीड, आफ्टरवर्ड्स दैट थिंग एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट्स इट। अखबार पढ़ो, इंडिया ईयर बुक पढ़ो और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो। जीएस का फाउंडेशन, जैसे फिजिक्स का फाउंडेशन बिल्टअप है, मेरी 4 महीने की क्लास के बाद फिजिक्स में जितने भी सिलेक्शन होते हैं मोस्ट इनके जैसे बहुत सारे आते हैं। ऐसे 2004 में कहा था विजय कुमार बिधूड़ी, 38 रैंक की आई थी। एगमूट कैडर में, अभी दिल्ली में पोस्टिंग हो गई है उसकी। 2000 जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का डीसी था वो, डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूड़ी, नाम बता रहा हूँ। 2004 बैच का, देश बंधु कॉलेज से 65% मार्क्स का बीएससी करके आया था सिर्फ मेरे पास, 65% मार्क्स। 2004 की बात है। 2004 का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, he had only BSc as a qualification. Vijay, right now he is posted in Delhi, and this Egmut cadre is there. नाम सर्च कर लीजिए, विजय कुमार बिधूड़ी 2004। ऐसे सेमिनार जैसे अभिषेक बैठे ना, बोला सर ने जो कहा वही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, और एक बार कह के गया यहाँ पर। अगर सर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, वही लिखना है एग्जाम में तुमको। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोट। विजय कुमार बिधूड़ी अभी भी कहीं मिले जाते तो कहो तुमने क्या कहा था सेमिनार में, यही कहा था सेमिनार में बैठ के। अगर सर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो एग्जाम में लेफ्ट टू राइट ही लिखना है, क्योंकि वही चाहिए वहां पर। और मैंने कुछ नहीं किया अदर देन व्हाट एवर सर सेड। इसलिए सर ने पहले एक ही बात कही सबसे पहले कि IIM अहमदाबाद का मोटिव स्टेटमेंट क्या है। जैसे इनको मैंने कहा कि 2 IIT बॉम्बे के बैठे, 2 नहीं 2-3 बैठे, 2 IIT बॉम्बे के बैठे। इनसे मैंने पूछा कि IIT बॉम्बे का जो पूरा मोटिव स्टेटमेंट क्या है, मतलब किस बड़े एम के साथ IIT बॉम्बे सेट किया गया था। एक ही एम है उसका, क्या है? ज्ञानम परमम ध्येयम। IIT बॉम्बे के इन्फिनिटी कॉरिडोर में एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ज्ञानम परमम ध्येयम। हर बच्चे को याद होता है, जो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट करके आता है ना, उसको याद होना ही चाहिए, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए ज्ञानम परमम ध्येयम का क्या मतलब है। ऐसे ही IIM का मोटिव स्टेटमेंट है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? जिसको श्रद्धा होती है, जिसको ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है उसका भी मैंने ट्रस्टेड नहीं, मैंने कोई चीज कह दिया इसमें ट्रस्ट है। ट्रस्ट को आपकी कसौटी पर वो सही लगना चाहिए। आप स्टैंडर्ड सोर्सेस से उसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन जब वो सही लगता है तो उसके बाद क्या करना है, जो अभिषेक ने किया। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल में और फेलियर्स में। इसने वो कर लिया। सुनते तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारे मान भी लेते हैं कि सही कह रहे हैं सर, लेकिन 90% के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि उसको कन्वर्ट कर ले एक्शन में। एक्शन में कन्वर्ट करना बड़ी बात है। उसके लिए मैं कहता हूं साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, उल्टा लटकना पड़ता है। जो शब्द 3-4 शब्द यूज करता हूं ना, उसका मतलब जो कर लेता है वो इधर बैठ जाता है आके। कोई नहीं, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग टू एवरीबॉडी, आई एम गिविंग द डिस्कोर्स टू एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सुन रहे हैं। सुनने से क्या होता है, बहुत सारे लोग उनको सत्य भी लग रहा होगा, सही बोल रहा हूँ। उसके बाद उसको एक्शन में कितने लोग उतारेंगे? जो एक्शन में उतारेगा वो पास होगा। कुछ नहीं, बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। मैंने कहा 13 से 15% लोग तक
इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं, और जो नहीं पास कर पाते उनको मालूम है, सक्सेसफुल और फेलुअर में यही अंतर है, उनको मालूम है। तभी मैं कहता हूँ दिस एग्जाम इज द एग्जाम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इनको मालूम है कि उन्होंने क्या गलती कर दी, पहले अटेम्प्ट में क्यों फेल हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में क्यों फेल हो गए। अगर वो गलती तीसरे अटेम्प्ट में ब्रिज कर लिया तो थर्ड अटेम्प्ट में पास हो गए, अगर ब्रिज नहीं करते तीसरे में फेल हो जाते। वो गलती ब्रिज करना है, ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, गलती तो होगी। यू विल ऑलवेज कमिट मिस्टेक्स। if you are a person, you have to commit mistakes, but how do you learn from your mistakes is important. How do you convert that mistakes into your assets? उसको पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट करोगे उस मिस्टेक्स को, वो करना है, वो कर लोगे। इसलिए ये एग्जाम पर्सनालिटी का एग्जाम है, आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। और बड़ी बात बताता हूँ, खत्म कर, फिर मैं अपनी तरफ से एक लाइन जो कि जोड़ रहा हूँ। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म एक है ना, इथिक्स का पेपर जुड़ गया आपके एग्जाम में, इथिक्स में धर्म मतलब होता है राइटियस कंडक्ट। धर्म का क्या मतलब है, राइटियस कंडक्ट। व्हाट इज द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्रास? धर्म हैज गॉट 10 कमांडमेंट्स। वेस्टर्न फिलॉसफी में 4 ही हैं। धर्म के हमारे 10 लक्षण क्या? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य, पैसेंस। दिस इज द एग्जाम ऑफ पैसेंस। पहला गुण है धैर्य, और धैर्य किसी और एग्जाम में टेस्ट नहीं होता। जहाँ ऑब्जेक्टिव आंसर होता है वहाँ धैर्य का टेस्ट नहीं होता, अम्बुलनेस का टेस्ट नहीं होता, विनम्रता का टेस्ट नहीं होता। सिर्फ पैसेंस का, परसिवेरेंस का और अम्बुलनेस का टेस्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ही होता है, जहाँ पर आपको परसिस्टेंसी चाहिए होती है। 2 साल 3 साल फेल हो जाने के बाद फिर खड़े हो जाना। इतनी निगेटिव सिचुएशंस है कि सारा 2 साल 3 साल लगा दिया है। लोग तो $1-1 लाख का जॉब छोड़कर आते हैं, $1,30,000 का छोड़ जॉब लोग छोड़कर आते हैं, और एग्जाम प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, और फिर वो खड़े होते हैं और पास होते हैं, खड़े होते हैं पास होते हैं। स्टोरी सिर्फ उनकी लिखी जाती है जो एग्जाम पास करता है, फेल होने वाले की कोई कहानी नहीं है। वो 5वें अटेम्प्ट में पास कर गई ना, मैं तो बार एक बार कहता हूँ हमेशा कि अगर अगली बार होती तो उसका प्री फेल हो जाती। मैं खुद हो जाता सर, उसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट रैंकर है वो 4 अटेम्प्ट से प्री फेल हो रही थी, और 2 इंटरव्यू में 200 नहीं आते तो कैसे ही फर्स्ट रैंक नहीं आती। अगर अगली बार देती तो मुझे लगता है कि हो सकता है फिर प्रीलिम्स ही फेल हो जाती हो, ठीक है, खत्म। लेकिन भगवान उसके मेरे पास यहाँ पर आए, हमारे यहाँ इथिक्स पढ़ाने के लिए एक बड़े हस्ती को हमने इनरोल कर रखा है, उनका आशीर्वाद मिलता है। प्रोफेसर रंगन दत्ता, प्रोफेसर आर दत्ता जी जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं, 1966 बैच के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे, और यहाँ पर बहुत मरी हुई आवाज़ में बोलते हैं। IAS ऑफिसर वगैरह मेरे जैसे नहीं बोलते, मैं तो नेता की तरह बोलता हूँ, और IAS ऑफिसर बड़े धीरे धीरे बोलते हैं। मरी हुई आवाज़ में आप बोल रहे थे आके कि बाई गॉड्स ग्रेस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। उनका एक वीडियो मेरे उसमें चैनल में लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल में। रंगन दत्ता इंटरव्यू के बोर्ड, बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड को भी हेड करते हैं वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, आसाम के चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ आसाम के। एंड ही सेड वन थिंग ओनली हियर, दिस एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम मेनी थिंग्स रिक्वायर्स व्हाट? God's grace. God's grace. There is no measurement for God's grace. God's grace is a function of your, आप कितना गुडविल जनरेट करते हैं, इज ए फंक्शन ऑफ योर गुडविल, हाउ मच गुडविल यू जनरेट। जितने भी टॉपर्स देखे एक कॉमन फैक्टर है अकॉर्डिंग टू मी, ऑल ऑफ देम आर वेरी अलो। जिसमें ईगो है वो अभी तक मैंने यूपीएससी का टॉपर नहीं देखा। मेरा तो एक ही चीज है, जितने भी यूपीएससी के टॉपर देखे मैंने IAS के एग्जाम के, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर वेरी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल। वन कॉमन फैक्टर, आज भी मैं बार बार जब सुप्रीत सिंह गुलाटी का नाम लेता हूँ, सुप्रीत, अभी मैंने फोन किया उसको, 2nd रैंक थी 2007 के एग्जाम की, एंड ही वेंट टू टेक ए सेमिनार एट लवासना, जॉइंट सेक्रेटरी गुजरात कैडर। इस सच डाउन टू अर्थ हम्बल। मैंने इतने साल के बाद, 8-10 साल के बाद फोन किया, मुझे लवासना से किसी ने फोन किया लास्ट टाइम, इसकी 14th रैंक थी, मेड में फोन कॉल कि सर सुप्रीत गुलाटी सर आ रहे हैं, और यू हैव टेकन हिज नेम सो मेनी टाइम्स, इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे हैं, तो सुप्रीत गुलाटी सर को मेरा इंट्रोड्यूस कर दो। I just made a phone call and my number 9008 is a very familiar number. Since last 22 years I am keeping that number. अब किसको याद होता है, लेकिन उसकी मेमोरी इतनी शार्प, ये थोड़ा कि मेरा नंबर इसके बाद लिखा होगा। इतने फोन बदल जाते हैं लोगों के, बट जैसे 9008 के नंबर, मैंने कहा इसको 9008, ये भी मेरी स्मार्टनेस थी। I will not make phone call with my other numbers. I will make a phone call with 9008 number which this person is familiar.
ये फैमिलियर है। तो जैसे मैंने 9008 नंबर से फ़ोन किया, उसने कहा सर वाजपेयी सर करेगा, मतलब मुझे लगा कि अभी भी वही है, मतलब ही मेमोरी इज सो शार्प दैट ही कुड स्टिल फाइंड आउट दैट नंबर इज वाजपेयी सर विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। ही सेड वाजपेयी सर, कि सर कैसे फ़ोन किया, फिर मैंने बताया कि क्या है, इमीडिएटली दैट। सो हम्बल, सो नाइस एंड पर्सन ऑफ एक्सट्रीमली गुड इंटीग्रिटी। जिससे भी मैंने गुजरात कैडर में बात की, लोगों ने कहा कि आपका क्या शानदार स्टूडेंट है, ही कैन नॉट बी बॉट, ही इज करप्शन फ्री। इतनी एक अच्छी रेपुटेशन है, आई बिकम वेरी हैप्पी आई गॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। इनकी इमेज, तो इमेज इज ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड। अगर आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हो तो तुम कहीं पर भी रहो। आई विल कम टू नो दैट हाउ अभिषेक इज परफॉर्मिंग, वर्ड इज सो शॉर्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद हिम। ऑल्दो आई रिक्वेस्ट कि जब भी दिल्ली आओ तो मेरे पास आओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें ईगो और ह्यूमिलिटी वाली बात में मैं ऐड कर दूं कि आप खूब ईगो लेके आ जाओ इस एग्ज़ाम में, खूब अकड़ के साथ आओ प्रिपरेशन करने। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि तोड़ देता है आपकी ईगो। आपका सारा एरोगेंस ख़त्म हो जाएगा जब एक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा ना, तब आप सीख ही जाओगे कि झुकना कैसे है। मतलब सर आप, मतलब आई एम ऑनर्ड कि आपने बोला कि मैं हम्बल हूँ एंड ऑल, बट हमेशा से नहीं होता ना हर इंसान ऐसा सर। मैं भी बड़े अकड़ के साथ आया था कि क्या है ये एग्ज़ाम, अभी तक अच्छा ही कर रहे हैं सब चीज़ में, फोड़ देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन ये एग्ज़ाम हम्बल बना देता है आपको। और अगर आप नहीं बनते हो इसके साथ हम्बल, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल होता है। तो सर ने बोला ना किसी ऐसे टॉपर को नहीं देखा जो हम्बल नहीं है, वो हम्बल हो गए इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। इस एग्ज़ाम ने उनको हम्बल बना दिया। अगर वो हमेशा से नहीं थे तो आपको भी बना देगा, पहले बन जाओ तो अच्छा है। और कोई एग्जाम है इस देश में जिसमें हम्बलनेस और पैशंस को परसिवरेंस का टेस्ट होता है, बताओ? बाकी सब जगह नॉलेज का टेस्ट है, हम्बलनेस का टेस्ट कहीं नहीं है। तो नेतागिरी में होता है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तभी भी आपका हम्बलनेस सर को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन हाथ तो बस वोट लेने की तक ही जोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद तो टेढ़े हो जाते हैं। अगर इस एग्ज़ाम में हमेशा आपको एग्ज़ाम हम्बलनेस बनाता है और फंक्शनिंग भी आपको हम्बल बनाती है। तभी वो जो गांधी जी का टेलिस्मैन लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी की किताब में, you are capable of wiping out the tears from the last person in the row, तो वो कैपेबिलिटी डेवलप ये एग्जाम करा देता है। एंड ओनली दैट काइंड ऑफ पर्सन दिस एग्जाम इज स्टिल एबल टू रिक्रूट, दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द फेयरेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। आई कॉल दिस एग्जाम इज वन ऑफ द फेयरेस्ट एग्जाम, स्टिल इट इज एबल टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री स्टिल। बाकी सारा कोई एग्जाम इतना फेयर नहीं है जितना सिविल सर्विसेज एग्जाम फेयर है। आप उस प्रोसेस को जितनी जल्दी समझ जाओगे क्या टेस्ट कर रहा है, उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही ईजी होगा एग्जाम को पास करना। मतलब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही एक तरीके से ट्रेनिंग भी है आईएएस बनने की। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट 2 साल की ट्रेनिंग करा के किसी को जिला दे देती है या कोई भी पोस्ट दे देती है, तो नहीं है। अगर आपने 3 साल प्रिपरेशन करी है और 2 साल ट्रेनिंग, तो आप 5 साल ट्रेनिंग कर रहे हो। बिकॉज आपको क्या करना है, एक ऑफिसर बनने के बाद, एक ब्यूरोक्रेट बनने के बाद आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और उन केसेस में लेने पड़ेंगे जब आपके पास सारी नॉलेज भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है उसका क्या होगा। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग इन प्रीलिम्स। आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, लेकिन 2 में से आपको रिस्क लेना है, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी चेक हो रही है। आपके ऊपर प्रेशर आएगा, डेडलाइंस का प्रेशर आएगा, टाइम प्रेशर आएगा। दैट इज़ व्हाट बेसिकली यू आर डूइंग इन मेंस, कि भाई 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि जो चीज़ जिन लोगों को ये एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहा है, वो बेसिकली उस ट्रेनिंग से पास होकर आए हैं जो चाहिए एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखना अगर चालू करोगे, दैट यू आर ऑलरेडी ट्रेनिंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, लर्न जो सीख सकते हो उससे, एंड देन इवेंचुअली आई होप ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। देन सेमिनार इज ओवर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। सॉरी, हाँ हाँ श्योर, आई विल मेंशन सर। मुझे लगा दिया अच्छा किया। इस पे मेरा चैनल है, इस नाम से, इफ यू सर्च यू फाइंड इट। वहाँ पे मैं जनरली गाइडेंस और स्ट्रेटजी वाले पोस्ट डालता रहता हूँ। उसके नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क योर डाउट्स। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो आप पब्लिकली नहीं पूछना चाहते, और लाइक इफ इट्स समथिंग वेरी पर्सनल, सो आई विल आल्सो शेयर दिस। यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ऑल्दो आई विल सजेस्ट कि जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो इंस्टाग्राम से दूर रहो और किसी भी सोशल मीडिया से दूर रहो। दिस इज़ माई वेरी हम्बल सजेशन। मैं भी नहीं था, अभी रिजल्ट के बाद आई हैड टू इंस्टॉल इट,
क्योंकि सर किस किस को नंबर दूंगा? नंबर किसी को नहीं, नहीं मैं इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम नंबर किसी को देना ही नहीं। वैसे भी सर मैं देते टाइम बता देता हूँ कि ये बदलने वाला है, तो आई विल ऑल्सो मेंशन दैट। मुझे याद भी नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरा ये एडवाइस जरूर है कि नंबर किसी को मत देना। So you can connect with me इन दोनों में से जहाँ भी, if you prefer. I try my best to address all the genuine and specific doubts. तो अगर मैं नहीं कर पा रहा रिस्पॉन्ड तो you can make your doubt more specific. That's what I'll say. Thank you sir. Thank you everyone. Okay, All the class best. starts from tomorrow, same time, 5 o'clock, same place. Good. And test series starts from H2, AITDS, All India Test and Discussion Series. Only once in a year we conduct All India Test and Discussion Series, 2 weeks after pre. Like this year prelims was on 25th, so 8th June is the first test, and that procedure of test series is time tested. कि जो क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू करता हूँ वो हर बार टॉपर के साथ वेट करा लेता हूँ कि सही है, तो एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी है। पर्पज ऑफ द टेस्ट सीरीज इज टू गेट होल कोर्स रिवाइज्ड विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव है टेस्ट सीरीज का। एंड यू प्रैक्टिस हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये उसका टेस्ट सीरीज का एम होता है। एक ही बात चलती है साल में, और जो क्लासरूम के साथ टेस्ट सीरीज होती है उसका नाम होता है AITS। वो इस बार चलेगी अक्टूबर से। और जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में एडमिशन लेता है उसको एक बार तो क्लास के साथ देने की परमिशन होती है, एक बार क्लास के बाद जब क्लास खत्म हो जाए विद इन 1 year ऑफ एडमिशन यू कैन टेक टेलर मेड टेस्ट। जो AITS है उसके टेस्ट जो अक्टूबर से चलेंगे, समझ लो अक्टूबर में एक टेस्ट होगा, नवंबर में एक होगा, दिसंबर मार्च तक चलेंगे। वो 6 टेस्ट होते हैं AITS, उसमें हम बाहर वालों को भी अलाउ करते हैं। 6000 फीस होती है उसकी। हमारी क्लासरूम वालों के लिए फ्री होता है। एक तो क्लास के साथ टेस्ट चलते हैं, एक दूसरा AITS होता है जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वगैरह में चलता है। उसमें हम उसको यू कैन टेक दैट टेस्ट आल्सो। दैट टेस्ट इज टिपिकली टेलर मेड। कैसा? टेलर मेड। टेलर मेड का क्या मतलब है? टेलर मेड का मतलब है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आपने कोर्स खत्म कर लिया नवंबर में, ठीक है, अब आपको टेस्ट देना है, तो मुझे क्या मालूम आपको ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में एंटीना पढ़ा, आपने कौन सा कोर्स पढ़ा है, तो आप बताओगे कि आपने कौन सा कोर्स पढ़ लिया है। जो कोर्स आपने पढ़ लिया उसका पेपर आपको दे दिया जाता है और आप आंसर शीट ला के यहाँ सबमिट कर जाओगे, तो आपकी आंसर शीट मैं इवैल्यूएट करके दे दूंगा। इस पीरियड में कोई AITS नहीं होती है, कभी नहीं होती है, किसी के लिए नहीं होगी, ना होगी ना होती है। अभी सिर्फ क्या होगा 8 जून से AITDS चल रही है, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द पीपुल टेकिंग द मेंस ऑफ 2025। और उसमें एकाध अभिषेक जैसे जो मेरी कृपा दृष्टि पाते हैं, और कृपा दृष्टि पाने का उपाय मैंने बताया। क्या उपाय है? पहला टेस्ट आपको टाइम दूंगा, पहले टेस्ट में आपको 130, 125, 130 आ जाए मैं आपको एडमिशन दूंगा, अदरवाइज मैं किसी को एडमिशन नहीं देता। अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है तो गलती से ले लिया है, अदरवाइज आई एडमिट ओनली दोज पर्सन्स टू AITDS हु आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्री। आप अपने हिसाब से असेस कर लीजिए कि मेरा 100 मार्क्स आ रहा है, प्रीलिम्स पास हो रहे को मेरे हिसाब से 90 कट ऑफ होगा। अगर 90 वगैरह आपका आ रहा है तो आपको AITDS में एडमिशन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। दैट्स इट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you everyone.